while the operations guy has to perform all this management, maintenance, setup, patching, takes care of the security, takes care of the deployment, right? So if the development team knows one technology, you have to know hundreds of tools. That is the reason sometimes you get paid more than your managers, you get paid more than your senior developers, right? And our agenda, right? See, I'll be very honest here, Nirmal. Development is something which is not our cup of tea. Like, I'll not say this in case of everyone else's potential, but at least to me, I think programming is a bit complex. But even if they give you a task to write a simple, say, Lambda module or Terraform module, or I'll say sometimes they ask you to create a simple Python shell script or shell script, we have chat gpt free of cost. We can create it from there. Okay. That shouldn't be a big deal. So in our resume, once we do the classes, we will mention that we know shell scripting, because we will learn shell scripting in this course as well. So that added a value to your resume at the end of the course. I hope I answered your question. Thank you so much. So, like, see, I just have few more questions if you allow me. Sure. Thank you so much. So, basically, you know, when I was doing Azure, okay, we used to have an account and we used to like deploy virtual machine. We used to deploy VMSS. We used to deploy virtual VNet peering. We used to do VPN as well, and we did migrations on some point. So over here, can I get like we'll get a chance to perform live practice sessions as well, where we get hands-on on particular topics where it has been required. All right. So again, this has been covered in the demo, but I would love to answer I'm that so as well. sorry. That I is was fine. not in demo, Yeah, yeah, so that is absolutely fine. I don't have any issue in repeated questions. I just want these sessions to be interactive. Okay. So see, like you said in the beginning, the agenda, the approach we follow is, this is not college, right? And I'm not the professor, and you guys are not the students who will appear for the exam at the end of the what do I say, quarter, and then the results would be published. So everything, whatever I do, whatever I teach, that would be based on practical stuff only. And theory, I'll cover theory as in what I understood from that theory, and you have to prepare your own notes. That's the reason I'm saying you sessions are very important. When you prepare your own notes and when you revise it later, you will not forget that notes. And when you read from any online resources, इसको बोलते हैं ना, basically like you read it like silencer. You might have seen that movie, right? Three Idiots. रट रट के इंसान का कितना ही क्या ही होगा. In IT you have to be very practical. सो हमारा, मैं जो खुद के प्रोडक्शन में पाइपलाइन यूज करता हूँ, आई विल शो यू दैट हैंड्स ऑन पूरा उस पे होने वाला है, एंड हाउ दैट वुड बी वर्किंग. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन to give you a glimpse of how things work. And yeah, we will let you know how to set up this AWS account. We will ensure that every one of you have at least $300 ka credit for practice. That $300 ka credit will stay for like 6 months, and you can practice for paid services, paid AWS services as well. So you see, so you see here my screen. So we have, yeah. for Docker Practical, we have these many sessions wherein we will let you know how to install Docker, what issues you face in Docker, Docker layers, Docker architecture, right? Everything would be practical. Nothing would be mostly theory. Jenkins, we will cover Argo CD. Like Jenkins, we will cover push-based and pull-based both. EFK, then Kubeadm. We'll start with the open source tool. Then we have these many concepts and these many tools and technologies like involved subcomponents in Kubernetes as well, as part of EKS, HPA, multi-container, Prometheus, Grafana, right? Everything we will do practically. You just have to come here. I'll share this. I'll make this public once I teach that topic. And then you just have to come here. You have to copy this command and paste it. But before coming to this practical, you have to ensure, like I have to ensure that you know the theory of these tools as well. वरना वैसे वो तो वैसी बात हो गई ना, अंधेरे में तीर मारने जैसी. बस कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाई इट गॉट डेवलप, कैसे आया, हमको क्यों Correct. करना है. Those are the things which you need to ask me, and I should be able to answer that.
sir, are you going to study GitHub in detail? Suraj, I know GitHub very well. I've already studied. But if you mean that, will I cover GitHub in detail? Of course, there would be a couple of sessions dedicated to GitHub, right? I think Kubernetes के पहले हम GitHub देखने वाले हैं। वो इसीलिए तो बोल मुझे रहा एक, हूँ। या हाँ जी सॉरी सर, मैंने आपको इंटरप्ट किया बीच में। मुझे एक नो क्वेश्चन श्योर। पूछना है सर आपसे। अभी जैसे कि अज्योर और AWS, इसके ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी AWS के और अज्योर के दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो है मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा, तो मुझे, you are from L1 team. I am from L1 team and we work for infra basis Oh. and networking team. Okay. So basically what happens over here that whenever there is a threshold getting increased for a CPU memory Right, or for a CPU memory. prod servers, okay, that the like for example, the mount points are getting increased. So Got we it, got have it. to, yeah, we have to work accordingly. Now over here my questions is, I know the basic, okay, what I have learned from Azure Azure A04, okay, that every topic has a logic, okay. Correct. If there is a load balancer, there is a logic. If there is a VMSS, there is a logic, okay. Yes. So I want to know, if I know the basic understanding of Azure, okay, will I able to get the topics in AWS as well, or I will have to do some more brainstorming in AWS? See, as compared to AWS, like Azure, I feel AWS is quite easy. And if you know services in AWS, right, thoroughly in and out, Azure becomes a piece of cake for you. So I would especially recommend you show multi-cloud. You show Azure DevOps as well. You show AWS DevOps as well at the end of this course, because I'll be primarily taking sessions on AWS DevOps, and there is a dedicated expert trainer for you guys who will be covering your Azure DevOps at the end, like after AWS DevOps and Kubernetes. So since you're working in the organization, I would recommend you to show both. So tell them that you have worked in different projects. You can ask me questions on Azure as well as on AWS. So the probability of you getting hired would be easier, and you have come to the right place. If you know these basics, I think to take job for you, highest picking like highest package job, it would be a piece of cake for you, because you already work in an L1 based background, and I will give you a knowledge of L2, L3 and L4. So currently I'm working as at L3 and L4 level. So Okay. I'll share you that production based knowledge, and you can utilize that in your interviews. Thank you so much. Thanks a lot. Oh, sure. So guys, if there are no more questions, let's begin with today's session. I want you to answer one thing for me. What is the agenda of today's session? What do you think why we have mentioned here WHY? Let's try. I believe that the reason why you have written why is to understand that why we are learning this. What topics we will be going to get covered, and how we would be able to grow in our career if we are doing this by practical knowledge or by theoretical knowledge. Right. See, yeah, that's partially correct. The whole agenda of today's meeting is not to just understand, okay, I'll set the agenda for today's meeting. ये why के आगे जो question mark है ना, I'll complete that. That is why cloud, why Linux, and why DevOps. मतलब there should be a clarity, right? Why you are doing it. अच्छा, why cloud? If there was cloud, what was there before cloud? What were the issues before cloud? Why companies migrated to cloud? What are the feasibilities and benefits of cloud? Or else, let's say many a time people are confused. Why do we use Linux? Why do we not use Windows? So why Windows, right? Basically, that is the agenda for today. Okay. Motive behind the course. Yeah. So throughout the session, I'll not be only covering that why you should think, like why you are doing it. It is like throughout your journey, right? Throughout your life, you have to ask this question to yourself: if I'm doing this, why I'm doing this, why I'm here. Because वो जब self clarity आती है ना, then you reach somewhere at some point. Correct? So let me begin with okay, पहले ना क्लाउड समझने से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी तुम लोगों को, since we have all kinds of people here, right? मतलब non technical, and these non technical guys are really very smart, huh? They cope up with things very easily. तो एकदम बेसिक से जाते हैं.
विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सर्वर. मतलब डेटा सेंटर, क्लाउड समझने के लिए डेटा सेंटर समझना पड़ेगा, डेटा सेंटर समझने के पहले सर्वर समझना पड़ेगा. तो लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. और ना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर दो यार. ठीक है, अभी जैसे यू नो हाउ माई अप्रोच इज, हाउ आई टीच, व्हाट आई लव टू हियर, राइट. एंड प्रैक्टिकल क्या होता है ना, देखो, वेन एवर यू एंटर फॉर एनी इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू वर्बल होगा, वर्चुअल होगा, या फिर इन पर्सन होगा. बट इंटरव्यू में टास्क मिलेंगे क्या तुमको, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है. अंदर प्रोडक्शन में काम क्या होगा, थियोरटिकल काम होगा या प्रैक्टिकल काम होगा. प्रैक्टिकली टास्क मिलेंगे तुमको, यू हैव टू solve the problem, you have to deploy that, right. So our main focus is you should be practically independent. See, since you joined this classes 6 months, I'll be there. Post job support, I'll be there 6 months. Will I be there entire life? Nobody will there for you entire life. So you should be capable enough to independently handle things without anyone's else's support. I hope you guys agree with me. So we, the idea, the motive behind that is कि हम रहो ना रहो, कोई रहो नहीं रहो, you should be able to handle all these things. How to learn, how to think, how to practically solve the problem. And genuinely believe me guys, IT में ना everything is just copy paste. You need an IT engineer just to know कि कहाँ से क्या कॉपी करना है, कहाँ से किधर को क्या पेस्ट करना है. Everything is available online. Just documentation थोड़ा सा तुमको पढ़ना है, and you have to copy and paste things in your environment. Customize करना है उसको. All right, so let's begin today's session. So who can answer this? What is a server? What do you mean by a server? Server is to provide data services to client over a network. Okay. What else? What else? Who else can try? चलो, we have more than 20 people, guys. Let's answer. नहीं आता है, that is the reason I am here ना. नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं. We can give it a shot. Always speak. Always be vocal. HR के सामने और इंटरव्यूअर के सामने कैसे बोलोगे फिर? The PC which provide data to network computers. ओके, पीसी. इसने भी एक वर्ड बोल दिया, पीसी. ओके, अ सर्वर कैन बी अ पीसी. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी ये मेरा लैपटॉप है, विंडोज मशीन है. डोंट यू थिंक इट्स अ सर्वर टू मी? ये सर्वर काम कर रहा है कि नहीं? अब सर्वर क्या होता है बेसिकली ना, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ. ये तो थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गए एंड दिस वर पार्शियली करेक्ट. बट इंटरव्यूअर को ना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जानने में बहुत मजा आता है. लाइक स्पेशली अगर मेरे जैसा इंटरव्यूअर हो तो मैं सर्वर Collection को, of resources. हाँ, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो करेक्ट. बट It is अगर the ये thing सबको, that provides services to other network. करेक्ट, अगर ये सबको एक जुमले में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? सर्वर इज अ प्लेटफॉर्म विच रन्स ऑन टॉप ऑफ हार्डवेयर, राइट, वेर इन द एप्लीकेशंस आर होस्टेड. समझ रहा है? अभी ये जूम है, किस पे चल रहा है मेरा? ये नोटपैड प्लस प्लस है, ये गिट बैश है. डोंट यू थिंक इट आई एम रनिंग इट इन माई लोकल सर्वर विच इज माई लैपटॉप, है ना? सो सर्वर इज बेसिकली विच टॉक्स टू योर प्रोग्राम वेर इन यू होस्ट योर एप्लीकेशन. ठीक है, क्लैरिटी मिल गई थोड़ी सी. अब यू गाइस हैव टू आंसर मी, व्हाट इज दिस? बहुत बेसिक से जाएंगे, डोंट वरी. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीवन, व्हाट इज अ नोड? Connecting device. Connecting device, again theoretical answer but very good try. अब मैंने सर्वर बोल दिया. अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, सर्वर किसके अंदर है? मैंने नोड को बाहर बनाया है, सर्वर को अंदर बनाया है. हाँ हेलो सर. यस, इंस्टेंस बोला है हाँ सर. किसी ने. सर बोलिए बोलिए बोलिए. सर्वर्स मीन्स सर वो इंस्टेंस रहते हैं अपने सर्वर्स के, कुछ पब्लिशर्स, कुछ मतलब कनेक्टिंग सर्वर्स रहते हैं जो मेंटेन करने पड़ते हैं. करेक्ट करेक्ट. ओके, सर्वर तो हमने देख लिया बट स्टिल गुड ट्राई. नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट इज नोड? नोड किसको Connection बोलेंगे point. हम? कनेक्शन पॉइंट. ओके, व्हाट एल्स? वर्चुअल मशीन. ओके, सर्वर कैन बी अ वर्चुअल मशीन, इसको वीएम भी बोलते हैं. अभी जब हम
AWS पढ़ेंगे ना प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, देन इसके नाम चेंज होते जाएंगे, मैं बताऊंगा वो, बट अभी के लिए उसको सर्वर मानो, हाँ बट इसको वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नोड है ना, नोड दोस्त, नोड मैंने सर्वर के बाहर बनाया है, तो बेसिक एकदम बेसिक डेफिनेशन बोलता हूँ तुमको नोड की। नोड भी एक सर्वर ही होता है, बट नोड इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर इज नोन एज नोड। अगर मेरे पास में ना यहाँ पे एक सर्वर है ना, अगर ये सिर्फ एक सर्वर है तो जैसे किसी ने बोला ये सर्वर या फिर ये वर्चुअल मशीन कहलाएगा, बट एक से ज्यादा सर्वर है तो क्या कहलाएगा ये? अगर ये मतलब मेरे आप पास ऐसे बोल रहे हो क्या सर कि अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर 100 से ज्यादा सर्वर है तो फिर वो नोड कहलाएगा क्या? एग्जैक्टली 100 से ज्यादा नहीं, अगर एक से ज्यादा भी सर्वर होगा ना एक रैक पे, अभी मैं अच्छा। प्रैक्टिकली तुमको बताऊंगा वो, वी ओके। विल इन अ वाइल वी Data विल center. सी, हाँ इन अ वाइल वी विल सी गूगल का डेटा सेंटर, डोंट वरी, इन अ वाइल जस्ट गिव मी 5 minutes, बिफोर दैट आंसर मी दीज थिंग्स, मैं जस्ट बताऊंगा तुमको, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी वहां पे। तो एक अगर सर्वर हुआ तो उसको स्टैंड अलोन यानी कि वर्चुअल मशीन बोला जाएगा। एक से ज्यादा सर्वर हुए, कलेक्शन ऑफ सर्वर इज नोन एज व्हाट? नोड। कलेक्शन इज सर्वर इज नोन एज नोड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब और एक टर्मिनोलॉजी आती है दोस्त, बताता हूँ क्या है। अब अगर लॉजिकली आंसर देना, ठीक है, अब एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर तो तुमको आना ही चाहिए। अब बोलो क्लस्टर क्या होगा? अगर नोड जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ सर्वर, तो व्हाट इज क्लस्टर? Group of nodes. वेरी गुड, Collection of nodes. वेरी गुड। अब देखा कैसे चीज समझ आ रही है, कैसे सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो अगर एक सर्वर है तो स्टैंड अलोन सर्वर, एक से ज्यादा सर्वर है तो कलेक्शन ऑफ सर्वर इज ऑल्सो नोन एज नोड। और अगर ये बहुत सारे नोड है, अभी जैसे एक नोड ये हो गया है ना, अगर मैं इसी को रेप्लिकेट कर दूं, मान लो अभी इसका थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं, और हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे, तो ये मेरे समझ लो एक से ज्यादा नोड है ना, ये मेरा नोड 1 बन गया, ये मेरा नोड 2 बन गया। अब ये नोड 1 एंड नोड 2 आर दी पार्ट ऑफ माई क्लस्टर, है ना। अगर बहुत सारे नोड्स है मेरे तो वो मेरा क्लस्टर बन गया। अब फाइनली अपने टर्म पे आते हैं, अपने को जो देखना है, बहुत इजी है यार, मतलब अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़े ना तो कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी। अब बताओ ये क्या होगा? सेंटर, व्हाट इज दिस गाय? अब लॉजिक लगाओ। Cluster. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक चीज मुझे सिर्फ बतानी थी तुमको, तो हो नहीं सकता है तुम सब जॉब लेने के केपेबल हो, मुझे सिर्फ तुमको पुश करना है एंड यू विल बी एबल टू टेक जॉब, दैट इज राइट, यू गाइस आर वेरी नाइस, मतलब तुम लोग राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो। एक चीज मैंने तुमको बताई, रेस्ट आंसर्स आर क्लियर फॉर यू। तो डेटा सेंटर इज नथिंग बट, कोई भी पूछा ना तो एक लाइन का आंसर है दोस्तों, उसका ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है लाइफ में, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं थ्योरेटिकली तुमको पढ़ाऊँ ना, ऐसे ये ब्ला ब्ला वो बड़े बड़े जार्गन देखे, मतलब बनेगा क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है, इंटरव्यूअर पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं मांगता है, तुम्हारा कंसेप्ट देखता है दोस्त, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। तो डेटा सेंटर इज नथिंग बट अ collection of cluster. Now let me give you a walkthrough of Google's data center. अगर मैं इमेजेस पे आऊँ, क्या दिख रहा है ये? अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम आंसर करोगे, ठीक है? तुम लोग बहुत बोल रहे थे ना सर डेटा सेंटर बताओ, ये जो एक एक है ना, ये 1 2 3, ये क्या है पता है? ये जो एक इसमें बहुत सारे सर्वर है, इसको बोलते हैं Cluster. रैक। हाँ नहीं, ये तो क्लस्टर पूरा है, मैं बताऊंगा। ये जो एक रैक में इतने सारे सर्वर दिख रहे हैं तुमको, देखो 1 2 3, इधर देखो पट्टी दिख रही है एक, ऐसे अलग अलग रैक होते हैं डेटा सेंटर में। तो ये एक रैक के अंदर ना मल्टीपल सर्वर है, देखो 1 2 3 दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है ना साइड में, Yes, ये sir. मल्टीपल रैक में मल्टीपल सर्वर है। तो ये एक रैक जो होता है ना दोस्त, एक रैक, वो एक नोड कहलाती है। क्या कहलाती है? एक रैक जो होती है वो एक नोड कहलाती है। और ये एक नोड नहीं है, यहाँ पे कितनी नोड दिख रही है? नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4। तो ये कलेक्शन ऑफ नोड हमने क्या देखा था, क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड को क्या बोलोगे तुम? Cluster. क्या बोलोगे? क्लस्टर। और ये क्लस्टर होस्टेड कहाँ पे होता है? ये रहा डेटा सेंटर, कलेक्शन ऑफ क्लस्टर है मेरे पास।
एक क्लस्टर इधर है, दूसरा क्लस्टर शायद दूसरे रूम में रहेगा, एंड दिस कलेक्शन ऑफ क्लस्टर इज नोन एज दिस डेटा सेंटर। अब ये डेटा सेंटर को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या है, मैं इस पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इन क्वाइट सम टाइम। देख लो, इधर जंगल है, पानी है, हवा है, फैन है, लैंड है, ये सब देखो, मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये फोटो को अच्छे से देख लो। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड एंड क्लियर व्हाट इज अ डेटा सेंटर, व्हाट आर सर्वर्स, व्हाट इज अ नोड एंड व्हाट इज अ क्लस्टर? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट मी टेक इट एज अ नो। अब मुझे एक बात बताओ, डेटा सेंटर तो तुमने देख लिया, ठीक है, अब कोई मुझे ये बताएगा क्या कि व्हाई द हेल इट इज नीडेड? क्या लगता है तुमको, डेटा सेंटर क्यों चाहिए अपने को? बताओ। To store the data अरे or सही है यार, क्या बात है, राइट डायरेक्शन में, स्टोरेज। और वर्चुअल मशीन। वेरी गुड, मतलब समझ लो अगर ऑन डिमांड मेरे को कुछ चाहिए, ऑन डिमांड नहीं, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, सर्वर अगर मेरे को चाहिए, है ना, बेसिकली। ठीक है, तो मैं ये सर्वर। बोल सकता हूँ ना, अगर मैं बेसिकली अगर मैं सर्वर ले रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं सर्वर ले रहा हूँ, सो आई वांट टू टेक दैट सर्वर फॉर एनी पर्टिकुलर टास्क, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ के प्रोसेसिंग के लिए, है ना, बेसिकली वो सर्वर ले रहा हूँ। अभी हम लोग ना ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब डेटा सेंटर में ये चीजें आ गई, क्लस्टर, नोड, सर्वर, ये सब आ गए, तो वो हिसाब से सोच के बोलो कि ये चाहिए तो क्यों चाहिए मेरे को, डोंट यू थिंक? अरे वाह, कौन है दोस्त ये, सही एंगल में सोच रहा है। कुणाल, वेरी गुड, सिक्योरिटी, करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये भूलना नहीं है कभी, सिक्योरिटी। और तुम लोग ने अभी मेरे को बहुत ज्यादा नेटवर्किंग के भी बारे में बोला था, तो डोंट यू थिंक नेटवर्किंग के लिए भी लगेगा तुम्हारे सर्वर की? कॉस्ट कटिंग, ईश्वर, कॉस्ट कटिंग एंड दो स्टफ्स, वो हम अभी से कुछ देर में उस पर आएंगे, बट गुड पॉइंट, कॉस्ट कटिंग है उसमें। 11.9 ड्यूरेबिलिटी। क्लाउड के लिए 11.9 ड्यूरेबिलिटी के लिए भी होता है, बट दैट इज अगेन अ क्लाउड कंसेप्ट, वी विल टच बेस दैट इन अ वाइल। हम लोग उससे भी पहले वाली चीज देख रहे हैं, पहले लास्ट में हम क्लाउड पे आएंगे। क्यों मालूम है, जब पहले वाली चीज समझेंगे, जब पहला वाला प्रॉब्लम समझेंगे ना, तो क्लाउड सीखने का मजा अलग आएगा। अगर मैं डायरेक्ट क्लाउड पढ़ा दूं तो फिर मतलब है क्या, क्या प्रॉब्लम थी ऐसे, क्यों क्लाउड पे आए हम लोग, वो देखना है हमको। ठीक है, तो इसके अलावा मैं समझो बोलूंगा नेटवर्किंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गिनी चुनी चीज है जिसके लिए हमको खुद का डेटा सेंटर, मतलब डेटा सेंटर चाहिए। अब अगर मान बैकअप। लो, हाँ बैकअप भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अभी अगर मान लो मेरे को खुद का डेटा सेंटर खोलना है, तुमको क्या लगता है, अगर तुमको खुद का डेटा सेंटर खोलना है तो क्या लगेगा तुम लोगों को, जरा बताओगे मुझे? सबसे क्या? पहले तो एक जगह लगेगी रेंट पे लेने के लिए। रेंट पे? उस रेंट वाली जगह नहीं चलती है यहाँ पे, तो लैंड लिख लेता हूँ, बट अ वेरी गुड लैंड, पॉइंट टू स्टार्ट विथ, वेरी गुड, लैंड। ठीक है, व्हाट एल्स? पावर, सर्वर्स, इलेक्ट्रिसिटी। किसी ने बोला यहाँ पे अभी पावर, पावर। बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो उसको मैं लिखता हूँ। मैंने इसलिए बोला था ना, देखो हर सेशन जो रहेगा ना गाइस, ध्यान दो, हर सेशन एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा, तो अगर पिछला वाला सेशन समझाए तो आगे वाला सेशन समझेगा, और मेरा अप्रोच यही है पढ़ाने का। मैंने क्या बोला था, ये फोटो देख लो, ये फोटो देख के तुम लोग ये आंसर दे पा रहे हो, करेक्ट? किसी ने बोला पावर सप्लाई, किसी ने बोला लैंड, वेरी गुड। components. एटमॉस्फेयर। इंटरनेट लगेगा डेटा सेंटर इंटरनेट, चलाने अब के मुझे लिए। बताओ, वेरी गुड, अब मुझे बताओ, अब ये जो इंटरनेट डेटा सेंटर में लगता है ना, तुमको क्या लगता है ये अपने नॉर्मल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जैसे होता है क्या, लोकल आईएसपी, कि भाई नहीं, पाँच लोकल सौ नहीं रुपये होता है। 500 रुपये में मेरे को 100 Mbps दे दे, रात में 12 बजे के बाद में मैं आराम से नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा? डू यू थिंक दैट दैट इज द केस इन केस ऑफ डेटा सेंटर? नो, No, क्या sir. लगता है दे यहाँ पे? रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड कनेक्शन। उसको बोलते हैं लीज लाइन, विच इज प्लीज। मोर देन 100 GB पर सेकेंड। गाइज मैं यहाँ पे ना एमबी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है ना, 100 GB प्लस वाली स्पीड से चलता ही है। क्यों? अब इसका रीजन बताता हूँ। एनी ऑफ यू एवर नोटिस्ड कि तुम अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए हो, मान लो यू, जैसे कोई त्योहार है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल, लेट्स से देयर इज अ रक्षाबंधन त्योहार कमिंग,
और सभी लड़के जितनी अपनी बहनें तुमने बना के रखी है उनके लिए तुम राखी ले रहे हो ऑनलाइन, या यू आर परचेसिंग सम गिफ्ट। एनी वन ऑफ यू डिड एनी टाइम ऑब्जर्व कि फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का पेज कभी डाउन होता है, इशू आता है, तुमको एरर आता है कनेक्टिविटी की वजह से? नहीं, राइट? वाई? वो खुद के डेटा सेंटर में ये लाइन यूज करते हैं दोस्त। अपने जैसे नल्ला वो क्या बोलते हैं उनको, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम नहीं चलाने हैं उनको, उनको ट्रांजैक्शंस करने हैं, उनकी उनका डेटा उनका वेबसाइट पूरी दुनिया में एक्सेस हो रहा है। तो तुमको क्या लगता है एमबीपीएस में काम होगा उनका? नो, नॉट लेकिन एट ये ऑल। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है सर, ये मतलब कि जैसे अभी ऑन डिमांड, मतलब ये किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं या खुद से लोग ने खुद का डेटा सेंटर बनाया? वी विल कम टू दैट while we teach, while we proceed cloud. ओके अब ये ओके। मैंने गूगल का डेटा सेंटर बताया ना तुमको, अमेजोन का बताऊंगा तो भी ऐसा हाँ ही जी। रहेगा। ये दूसरे पे रिलाई नहीं करते हैं। ये देख लो, ये अमेजोन का है। अब अगर तुमको एप्पल का देखना है, अच्छा ये तुमको फोटो इतनी खूबसूरत ये दिख रही है, बट ये किधर बना है ना, ये किसी के बाप को भी नहीं पता रहेगा। बोलो क्यों? अरे दोस्त, पूरी दुनिया भर का डेटा कॉन्फिडेंशियल उधर होता स्टोर है, हो रहा है। डोंट सिक्योरिटी यू पर थिंक इट इज कॉन्फिडेंशियल? वेरी कॉन्फिडेंशियल गुड। होता है। अगर सिक्योरिटी अगर पता पर्पस। चल गया तो और एक ये किसी ने उड़ा देंगे, हम्म, मतलब कुछ भी हो सकता है। और राइट राइट, अभी और एक किसी ने बोला था सिक्योरिटी पर्पस, तो ये सही अच्छे जार्गन्स दे रहे हो तुम लोग मेरे को। ठीक है, और क्या लगेगा मेरे को डेटा सेंटर चालू करने के लिए? डोंट यू थिंक मेरे को? कंपोनेंट। कूलिंग हाँ, सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, वेरी गुड, बट उसके पहले मेरे को फिजिकल सर्वर लगेंगे ना। यस। हाँ, जिधर मैं रैक में प्लेस कर पाऊँ, और वो सर्वर की कूलिंग के लिए मेरे को एसी भी लगेगा। और ये सारा प्रोसेस क्या है? अगर तुम खुद का डेटा सेंटर डालते हो तो ये क्या है? डोंट यू थिंक इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग? यस सर। और दूसरी बात, डेटा सेंटर जब तुम डालते हो तो उसको क्या 500 1000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है क्या? इट रिक्वायर्स एकर्स ऑफ लैंड, मैन पावर लगेगा। अरे क्या बात है, ये चीज तो मैं भूल ही गया था। मैन पावर एज इन ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन लोगों ने एक टर्म दिया है बस, तुम जो बोल रहे हो वही है वो। उन लोग इसको बोलते हैं रिसोर्सेस। एम्प्लॉयज को ही रिसोर्सेज बोला जाता है। ये सब मैनेज करना होगा दोस्त। वो बंदा सही बोल रहा है जिसने बोला है, उसके लिए आदमी तो लगेंगे ना काम करने के लिए। जो ये एसी देखेगा, सर्वर खराब हो गया तो देखेगा। तुमको क्या लगता है अमेजोन के, एप्पल के डेटा सेंटर में कभी सर्वर्स खराब नहीं होते? डोंट यू थिंक दे रिप्लेस देम? यस, वो रिप्लेसमेंट के लिए आदमी लगेगा ना यार दोस्त, रिसोर्सेज। अच्छा, अभी तुम अगर ये सब चीज करने को गए, जैसे गिव यू एन एग्जांपल, व्हाइल आई वाज वर्किंग विद टेक महिंद्रा, मैंने देखा टेक महिंद्रा का लैंड, दे बॉट इट इन हिंजेवाड़ी का फेज 3 का, दे बॉट द लैंड इन 1996। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन 1998, टेकेम का। तो हिंजेवाड़ी में उस समय में कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट उनको ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, कचरे के भाव में मिल गया रहेगा। बट अभी अगर उधर वो लोग, वो कंपनी आज अगर डालने की कोशिश करे तो बहुत कॉस्टली होगा ना। तो ये तुमको एकर्स ऑफ लैंड लगेगा, पावर सप्लाई लगेगा, लीज लाइन लगेगा, सर्वर लगेगा, इतना सारा खिचड़ी। ये सब करने के बाद तुम खुद का डेटा सेंटर खोल पाओगे? डोंट यू थिंक इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग? बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत खिचड़ी वाला काम है ये करना। तो मैं अभी एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। क्लाउड आने के पहले क्या था वो देखेंगे थोड़ा। हम्म, तो यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग कर लेता हूँ, एंड बेयर विथ मी। मेरा ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने बचपन में ड्राइंग पे ज़्यादा ही ध्यान अच्छा दिया है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अब मान लो ये मेरा एक डेटा सेंटर है जिसको मैं नेम कर रहा हूँ DC1। तो क्लाउड आने के पहले ना दोस्त, एक चीज़ होती थी, डेटा सेंटर ही होता था, बट उसको ये बोलते थे, अभी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। किसी ने नाम सुना है क्या ये चीज़ का? मुझे बताना। नाम सुना है किसी ने? बेयर मेटल। क्लाउड आने के पहले ना वो, फिजिकल हार्डवेयर। वेरी गुड, फिजिकल हार्डवेयर तो होता ही है, मतलब डेटा सेंटर को फिजिकल हार्डवेयर ही बोलते हैं। बट बेयर मेटल एज इन यू आर नॉट ऑन क्लाउड येट। अब वाई इसको बेयर मेटल क्यों बोला जाता था? इसको और एक नाम देते हैं, बट वो नाम ना मैं पहले तीनों कवर करवा लेता हूँ, फिर वो नेमिंग कन्वेंशन लिखेंगे हम। अब तुमको क्या लगता है ये जो एनवायरनमेंट हमने देखा ना, ये बेयर मेटल, अभी अभी के लिए समझ लो, ये जो डेटा सेंटर डिप्लॉयड है ना मेरा, ये डेटा सेंटर, ये बेयर मेटल एनवायरनमेंट में है।
किसमें? बेयर मेटल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके चैलेंजेस तुम मुझे थोड़ा सोचो। क्लाउड जब पिक्चर में नहीं रहा होगा, ठीक है, लाइफ में लोगों के जब ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे वर नॉट ऑन क्लाउड, व्हाट डू यू थिंक ये बेयर मेटल में क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे कंपनीज को? व्हाई दे माइग्रेटेड टू क्लाउड? थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, मैं फिर आगे के लिखता हूँ खुद। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर तुमको खुद का डेटा सेंटर इतना बड़ा खड़ा करना है, सब कुछ करना है उसमें, सब कुछ, मैंने यहाँ पे इसलिए सारी चीजें लिखाई है, ये सब कुछ तुमको करना है, तो डोंट यू थिंक यू विल नीड बहुत सारा ये मेंटे यार ये तो कंफ्यूजिंग है, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट नहीं जाएगा यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा? Definitely. दूसरी बात, इसमें ये नहीं है, अच्छा ये क्यों है अभी ये समझ लो। अब मान लो हमारे पास में कौन है, अभी क्वेश्चन कौन पूछ रहा था मुझे, निर्मल, राइट? लेट्स से हमारे पास में निर्मल है एंड कुणाल है। अब निर्मल ने खुद का डेटा सेंटर चालू कर लिया। निर्मल ने कहा कि नहीं, आई एम फिल्थी रिच, आई एम फ्रॉम अ वेरी फिल्थी रिच बैकग्राउंड, आई विल बी एबल टू डील विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड उसने अपने सर्वर्स लैंड करने चालू कर दिए, यानी कि रेंट करना चालू कर दिए एंड कस्टमर्स को। अब मान लो कुणाल आया, कुणाल को अपनी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, है ना, इसके डेटा सेंटर पे डिप्लॉय करके चालू करनी है। तो कुणाल को जितने सर्वर लग रहे थे कुणाल ने ले लिया। अब निर्मल को तो ये पता ही नहीं कि डाउन टाइम वाला और वो वाला सीन भी होता है यहाँ पे, रिस्क वाला। अब कुणाल जो थे, निर्मल ने क्या किया, निर्मल ने एक नोड, ऐसे 3 नोड एक डेटा सेंटर में डेडिकेट कर दिए कुणाल को फॉर फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट, कुणाल को पता है कि ग्लोबल एप्लीकेशन है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ कुणाल के सिटी या कुणाल की कंट्री से ही उसको एक्सेस किया जाएगा, अक्रॉस द ग्लोब से एक्सेस किया जाएगा। अब मान लो ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे आग लग जाती है, ये तीनों नोड कुणाल के जल जाते हैं, इससे पूरा क्लस्टर जल जाता है निर्मल का, अनफॉर्चुनेटली। डू यू थिंक उस केस में कुणाल का एप्लीकेशन काम कर पाएगा? जिधर सर्वर पे जो होस्टेड है वेबसाइट एप्लीकेशन, वो सर्वर ही जल गया, तो इसमें रिस्क है नहीं है? बताओ। Full risk. ऑफ कोर्स रिस्क है, यानी Very, very. सिस्टम में क्या आ गया, डाउन टाइम आ गया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग देखेंगे ना ऑन प्रेम, इसके बाद जब देखेंगे तो और मजा आएगी, तो ये चीज, ये पॉइंट और क्लियर होगा। बट उसके पहले एक चीज देख लो, इसमें ना 2 चीज होती थी, केपेक्स एंड ओपेक्स। अब इसको किसको पता है क्या, केपेक्स एंड ओपेक्स? जिसने क्लाउड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, निर्मल, एनीबडी एल्स? So sorry, I have not been told about this. ओके, क्लाउड का ना सबसे बेसिक फंडामेंटल पिलर है केपेक्स एंड ओपेक्स, और ये पहले से चलता आ रहा है। अब मैं ना इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। केपेक्स को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स को बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। देखो नाम से ही चीजें क्लियर है। जैसे 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों से समझ में आएगा। लेट्स से एवरीबॉडी स्टेज बैक एट योर होम, तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कभी ना कभी तो वो लैंड खरीदा होगा, तुम्हारे लिए घर बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन की उनको कॉस्ट आई होगी, पावर सप्लाई उन्होंने लिया होगा, उन्होंने एसी लिया होगा, एंड दिस दिस प्रोसेस वाज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें कर ली, तुम्हारे लिए डेटा सेंटर, यानी तुम्हारे लिए उन्होंने घर बना दिया तुम्हारे रहने के लिए। अब ये क्या था, ये वन टाइम सेटअप नहीं था पूरा, जो घर बनाने का मेरे को खर्चा आया, लैंड का कॉस्ट, एसी का कॉस्ट, है ना, पावर सप्लाई लेने का कॉस्ट, बिजली लेने का कॉस्ट, ये क्या था, ये वन टाइम कॉस्ट था मेरा। तो क्या था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मेरे को वन टाइम खर्चा आया ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये जो डेटा सेंटर बनाने के लिए मेरे को वन टाइम पे जो ये चीजों का, एक सेकंड, ये जो डेटा सेंटर बनाने के लिए मेरे को वन टाइम जो कॉस्ट बैठा है पूरा डेटा सेंटर बनाने के लिए, दैट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक बार घर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बना दिया, अब उसके अंदर रिसोर्सेज आ गए ना बहुत सारे, जैसे रेफ्रिजरेटर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, टीवी आ गई। ये रिसोर्सेज क्या कर रहे हो तुम जितना यूज करोगे उतना तुमको बिजली का बिल भरना पड़ेगा, या फिर उसकी मेंटेनेंस एंड कॉस्ट देखनी पड़ेगी, करेक्ट? तो जो चीज एक बार कैपिटल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, घर बन गया, और घर के अंदर के रिसोर्सेज तुम जितने यूज कर रहे हो और यूजेज के हिसाब से जो पैसे तुम देने वाले हो उसके, दैट इज योर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। समझ आया? नहीं? और एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो काफी लड़के होते हैं, जैसे व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th, माय डैड गिफ्टेड मी अ बाइक, है ना, कॉलेज जाने के लिए था कि मैं कॉलेज जाऊँ
और मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि आई यूज टू ट्रैवल विथ लोकल बस, पीएमटी बसेस से मैं जाता था टिल 12th। देन ही बॉट मी अ बाइक व्हेन आई क्लियर माई 12th। अब उन्होंने मेरे को 12th में बाइक लेके दे दी, तो एक बार उन्होंने बाइक लेके दे दी, उनको वन टाइम सेटअप का कॉस्ट बढ़ गया, वन टाइम बाइक लेने का, दैट ही हैंडल द कैपेक्स। अब ओपेक्स कैसा है, अब जितनी बार मैं बाइक चलाऊंगा उतनी बार मेरे को उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, जितनी ज्यादा मैं चलाऊंगा उतना मेरे को उसका मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा, सर्विसिंग का। तो मैं जितना यूज कर रहा हूँ उतना ही पैसा खर्च कर रहा हूँ। हाँ, खरीदने के लिए मैंने पैसे खर्च किए क्या? नहीं, मैंने यूज करने के पैसे खर्च किए। तो केपेक्स यानी कि जो डेटा सेंटर बनाता है ओनर, जो डेटा सेंटर ओन करता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बैठता है, और जो यूजर्स होते हैं, एंड यूजर, जैसे अभी निर्मल ने डेटा सेंटर ओन किया तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पड़ा। और अपना दूसरा बंदा कौन था, कुणाल, उसने सर्वर लिए, तो जितने सर्वर लिए उसको उतना ही पे करना पड़ा। अंडरस्टूड गाइस? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज जी। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर? ग्रेट। अभी इसमें और एक प्रॉब्लम था, कोई बताएगा मुझे क्या था बेयर मेटल में? अब मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, अगर कुणाल की जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के 3 रैक जल जाते हैं, इसमें मान लो जो दूसरा बंदा है अपना, क्या नाम है, देवानंद, इसमें मान लो देवानंद ना कुछ कार्ट में उसने कुछ स्टोर करके रखा था कि यार ये मेरे को मेरी सिस्टर के लिए बहुत पसंद आ रहा है, बट ये मैं ना अगले हफ्ते में लूंगा इसको। कार्ट में, हम नहीं कार्ट में स्टोर करके रखते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, तो ये डेटा उसने स्टोर किया था, बट ये डेटा ये सर्वर पे स्टोर था और ये सर्वर ही जल गया। तो इस वाले केस में क्या होगा? अरे वाह, भाई ने बोल दिया, समझ गया अभी? ये भी प्रॉब्लम थी नहीं थी ये प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स Yes. डेटा लॉस की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, उससे डील करने के लिए तो क्लाउड पे आए हम लोग। अब बेयर मेटल कंपनीज ने क्या सोचा, यार इसमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। निर्मल ने क्या सोचा मालूम है? निर्मल ने सोचा यार मैंने करोड़ ऑफ मिलियंस लगा दिए यार ये प्रोजेक्ट पे, लेकिन इतना लफड़ा, मतलब एक रैक भी जल जाए तो मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक जो नया कंसेप्ट ट्रेंड में आया बेयर मेटल के बाद, वो चालू करती हूँ, एंड दैट वाज, अभी भी चलता ही है वैसे, अभी भी काफी बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। अच्छा, इसका तो तुम लोग ने फॉर श्योर नाम सुना होगा, अब ये मत बोलना इसका मत नहीं सुना है करके। सुना है नहीं सुना है? ऑन प्रीम Yes, we सर्वर्स heard. ना। ऑफ सुना कोर्स, है। ऑफ कोर्स सुना है तुमने। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है। अब निर्मल ने क्या दिमाग लगाया मालूम है? अच्छा, ये ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर के लिए ना जरूरी नहीं है तुमको इतना बड़ा लैंड लगे, ये सब लगे। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, जिसने भी काम किया है, लाइक आई स्टार्टेड माय करियर विद बीपीओ, निर्मल सिंस यू आर वर्किंग, तुमने कभी ऑफिस विजिट किया होगा ना, तो हर फ्लोर पे एक सर्वर रूम होता है अंदर, है ना, छोटा सा सर्वर रूम होता है जिसमें बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं और लैन केबल वगैरह लगे होते हैं। वो उस पर्टिकुलर फ्लोर का ना ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर होता है, पता है तुमको? जिसको हम लोग और एक चीज बोलते हैं, इन हाउस। क्या बोलते हैं? ऑन प्रेमाइसिस एंड इन हाउस। आज पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। किसी ने भी आज तुमको दिन में पूछा ना व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड क्यों यूज करते हो, ये सब चीजें बतानी है उसको तुमको। क्या रहता है वो? इन हाउस डेटाबेस। किसी ने काम किया होगा ना अमेजोन में या कोई भी बड़ी कंपनी में, या फॉर दैट मैटर बहुत छोटी कंपनी में भी, अगर तुम लोग मॉल में भी जाओगे ना, मॉल में एक छोटा सा सर्वर रूम होता है दोस्त, उसमें ऐसे ना छोटे छोटे सर्वर रूम, वो लोग एक 450-500 स्क्वायर फीट का एक रूम देते हैं जिसमें ये सारा तुम्हारा डेटा सेंटर होता है। इन हाउस डेटा सेंटर बोलते हैं जिसको, ऑन प्रीमाइसेस। अब इसमें दो तीन चीजें कैसे सॉल्व हुई है बताता हूँ। अब मान लो, अब मान लो निर्मल ने डेटा सेंटर चालू तो किया था, ठीक है, बट निर्मल का प्रॉब्लम क्या आ रहा था? अभी जैसे मान लो वो कौन सा बंदा था जिसने फ्लिपकार्ट वाली ये लैंड की थी निर्मल से? कुणाल। तो कुणाल ने ना मान लो पहले ना ये 3 रैक निर्मल को बोले कि मेरे को ये 3 नोड दे दो, मेरा इनिशियल बिजनेस है, तो ये मेरे को 3 नोड से मेरा काम चल जाएगा। कुणाल का फ्लिपकार्ट का वेबसाइट जैसे जैसे बढ़ता गया ना, डोंट यू थिंक कुणाल को और ज्यादा सर्वर की जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक हैंडल करने को, यूजर हैंडल करने को? तो कुणाल ने उसको, निर्मल को एक रिक्वेस्ट डाली कि निर्मल मेरे को और 6 नोड की जरूरत है, इनफैक्ट मेरे को एक पूरा क्लस्टर दे दे तू, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। बट अब निर्मल ने क्या किया था, लिमिटेड सेटअप किया था ये एक जगह। अब
ऑब्वियसली ना गाइज, वो बार बार थोड़ी ना लैंड खरीदते बैठेगी, खुद का डेटा सेंटर चालू करते बैठेगी, और जो बाकी दूसरे से रोड थे उसने दूसरे कस्टमर्स को दे दिए। तो इसमें और एक प्रॉब्लम आया। कोई बता सकता है वो प्रॉब्लम क्या है? मैंने हिंदी में बोल दिया, तुमको सिर्फ इंग्लिश में सोच के बोलना है मेरे को। सोचो थोड़ा। नॉन अपग्रेडेबल सिस्टम। अरे वाह, देखो ईश्वर ने क्या क्या आंसर डाला है यार। डोंट यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केलेबिलिटी? इजीली स्केलेबल है क्या मेरा सिस्टम इस वाले केस में? नो। अगर मेरे को सर्वर बढ़ाने हैं डेटा सेंटर पे या ऑन प्रीमाइस पे, तो मैं ऑन द फ्लाई बढ़ा सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अब इस वाले केस में क्या हुआ, कुणाल को निर्मल पे गुस्सा आ गया कि साला एक बार इसके डेटा सेंटर में आग लग गई, मेरा पूरा सिस्टम डाउन हो गया, अब मुझे और डेटा सेंटर और क्या कहते हैं क्लस्टर और नोड चाहिए। अब ये बोल रही है मेरे पास तो नोड ही नहीं है। अब साला मैं क्लाउड वाले के पास ना चला जाऊँ इससे अच्छा? समझ रहे हो, कस्टमर रहेगा तुम्हारे पास या भाग जाएगा? ऑफ कोर्स भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें और एक इशू है। क्या? डेटा लॉस हुआ था ना उसका, तो ड्यूरेबिलिटी है क्या डेटा की? नहीं है। तो अब समझो तुम लोगों कि ऑन प्रीमाइसेस मतलब इसने जो अपने टेरेस पे भी एक छोटा सा डेटा सेंटर खोला था, उसमें भी ये इशू आ सकती है। अच्छा, अगर ये डेटा सेंटर जल सकता है दोस्त, इसमें कुछ इशू आ सकता है, तो डोंट यू थिंक सो कि मेरे ऑन प्रीमाइसेस का भी डेटा सेंटर जल सकता है, इसमें भी इशू आ सकता है? तो अल्टीमेटली मेरे सिस्टम में क्या आया? बोलो जरा क्या आया? वो एक वर्ड है जो मेरे को नहीं चाहिए। कस्टमर्स को ये चीज नहीं चाहिए होती है। इसलिए मैंने बोला तुम लोग रात के 12 बजे एक्सेस करो या दिन के 12 बजे एक्सेस करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ये वेबसाइट हमेशा चलती क्यों रहती है? बिकॉज दीज गाइज आर नॉट फॉलोइंग दीज थिंग्स। दीज गाइज आर फॉलोइंग अ लेटेस्ट टूल, या फिर मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी विच हैज बीन डेवलप्ड सिंस 2003 and it is successfully capturing the market, which is what? क्लाउड। अब देखते हैं क्लाउड ने ये सारी चीजें कैसे एड्रेस की है। ये जो इश्यूज और चैलेंजेस हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि तुमको क्या लगता है क्लाउड ने ये कैसे हैंडल किया है, और उस चीजों के नाम बताओगे तुम मुझे। चलो बोलो, ट्राई करो, चलो लेट्स ट्राई। एनीवन हु कुड इजी आंसर? सेटअप। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो सबसे पहला पॉइंट उसने बहुत बढ़िया बोल दिया है। इजी सेटअप यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, उसको ही मैं अलग लैंग्वेज में लिखता हूँ ना, फुल्ली मैनेज्ड। अब ये ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ फुल्ली मैनेज्ड? ये जब जेफ बेजोस ने जब डेटा सेंटर चालू किया, तुमको बोला कि तू आके मेरे को पैसे दे लगाने के, तुमको बोला कि तू आके कुछ मेहनत कर, तुमको बोला कि तू पानी मार, तुमको बोला कि तू फैन लाके दे, तू एसी लाके दे? नहीं बोला, राइट? एवरीथिंग ही मैनेज्ड टू डू इट, एवरीथिंग एडब्ल्यूएस मैनेज टू डू इट। तो डोंट यू थिंक दिस इज फुल्ली मैनेज्ड? सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? ये तुम्हारा जितना खर्चा रहा है। पीपल हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज गो ऑन म्यूट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू। सो तुमको क्या लगता है, मतलब ये जितना जो इशू आ रहा था, इतनी सारी चीजें तुमने की है क्या? नहीं। जेफ बेजोस को थैंक यू बोलो दोस्त, सारी चीजें उसने कर रखी है। तो उसके लिए सबसे बड़ा मैन, अभी अभी अगर कोई इंटरव्यूअर आता है तो मुझे पूछता है कि व्हाई यू आर नॉट ऑन प्रेम, व्हाई कंपनीज माइग्रेटेड फ्रॉम बेयर मेटल टू क्लाउड या फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? बिकॉज क्लाउड इज फुल्ली मैनेज्ड, we just have to take care of the operational expenditure, because cloud follows what? क्लाउड एक मॉडल फॉलो करता है, वो मॉडल का नाम है पे एज यू गो। मतलब तू इतना ही पैसा भर जितना तूने यूज किया है, उसमें भी मैं तेरे को बहुत सारे डिस्काउंट्स दूंगा। अच्छा, अब इसमें जीरो डाउन टाइम है। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। आप मान लो कुणाल वाले केस में क्या हुआ था, कुणाल के 3 सर्वर जल गए थे, कुणाल का डेटा लॉस्ट हो गया था और उसकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं चल रही थी। क्लाउड क्या बोलता है, कुणाल ये जो तेरे 3 सर्वर है ना, ये मैं 3 अवेलेबिलिटी जोन में तेरे को होस्ट करके देता हूँ। यानी कि मान लो निर्मल का जो ये पहला डेटा सेंटर था, दिस इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे। अब पुणे के 3 रैक जल गए, बट क्लाउड तुमको मुंबई
और एक कोई नई समझ लो मुंबई और हैदराबाद में भी एक डेटा सेंटर है। तो अगर तुम्हारे पुणे के पूरा का पूरा डेटा सेंटर भी जल गया ना दोस्त, तो भी तुम्हारा मुंबई और हैदराबाद के डेटा सेंटर में सेम डेटा रेप्लिकेट है। क्या है? सेम डेटा रेप्लिकेट। तो इस वाले केस में अगर बताओ कुणाल के पुणे के 3 सर्वर जल भी जाते हैं, तो कस्टमर्स को फ्लिपकार्ट हैदराबाद और मुंबई से एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, राइट। तो इस वाले केस में सिस्टम में डाउन टाइम आया क्या? नहीं आया। और एक चीज इसमें मिल गई हमको, क्या बोलो? जो डेटा लॉस का प्रॉब्लम था कुणाल का, अब पुणे वाला डेटा सेंटर तो जल गया है, लेकिन उसका सेम डेटा मुंबई और हैदराबाद के अवेलेबिलिटी जोन यानी कि रीजन में है या नहीं है? है। तो सिस्टम में ड्यूरेबिलिटी मुझे मिली कि नहीं मिली? अच्छा, और ये ड्यूरेबिलिटी भी कितनी मिली है? 99.999, मतलब इसको कहते हैं हम लोग बेसिकली लेमैन टर्म में बोलो तो 11/9 ड्यूरेबिलिटी। 99 के बाद और 11 बार 9, इतने टाइम की ड्यूरेबिलिटी, मतलब इतना तुम्हारा डेटा क्लाउड बोलता है, प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताता है कि इतना मेरा डेटा मैं तुमको अवेलेबल करवा के दूंगा, अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज। या ये क्यों बोल रहा है क्लाउड? क्योंकि उसको मालूम है। अभी तुम लोग एक कॉमन सेंस की बात है यार, मतलब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके सोचो, अगर पुणे में आग लगती है तो सेम टाइम पे जरूरत है क्या, जरूरी है क्या कि मुंबई में भी आग लगे, हैदराबाद में भी आग लगे, एक ही टाइम पे तीनों डेटा सेंटर जल जाए मेरे? अच्छा, और एक चीज, चलो इससे और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं तुमको पूछ लेता हूँ। तुमको क्या लगता है कंपनीज में, अभी जैसे पुणे एक आईटी हब है, हैदराबाद इज एन आईटी हब, नोएडा इज एन आईटी हब, है ना, बैंगलोर इज एन आईटी हब, तुमको क्यों लगता है यहाँ पे इन्होंने कंपनीज क्यों चालू की, यहाँ पे इन्होंने खुद के डेटा सेंटर्स क्यों ओन किए? लेट्स यू कैन आंसर दिस। डोंट यू थिंक मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली इतना बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, दिल्ली तो अपनी राजधानी है, तो मुंबई दिल्ली जैसे सिटीज में कंपनीज क्यों नहीं गई? वाई टारगेटेड सिटीज लाइक पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, यही टेक Setup सिटीज क्यों बनी? cost, setup cost is high in Mumbai, Delhi. एक पॉसिबल रीजन ये है, बट तुमको लगता है ना अमेजोन $1 ट्रिलियन की कंपनी है दोस्त, उसके लिए मुंबई में लैंड खरीदना कोई बड़ी बात हो सकती है क्या? तो ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा, ये आंसर तो मैंने तुम्हारा खारिज कर दिया। और दिमाग लगाओ, सही जगह सोच रहे हो, और दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन कभी तुम्हारे दिमाग में आया क्या कि पुणे, बैंगलोर इधर की वैकेंसीज क्यों ज्यादा निकलती है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ज्यादा है तो इससे भी तो स्मार्ट स्मार्ट सिटीज है यार, दिल्ली है, मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है, पूरा बिजनेस रन होता है वहां से, उधर क्यों नहीं? वाई पुणे, वाई बेंगलोर, वाई हैदराबाद? लैंड ज्यादा है ना सर। ऐसा नहीं है यार, लैंड तो तुमको नहीं लगता है, जब डेटा स्पीड भी ठीक है, ये सब कंसिडर कर रहा हूँ मैं रिसोर्सेज, Due बट to security. अब थोड़ा सही जगह पे सोचना चालू किया है तुमने। सिक्योरिटी एज इन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, मतलब ना मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को बिजनेस लैंग्वेज में जो आंसर देगा ना, लॉजिकल आंसर मेरे को बहुत पसंद आता है वो बंदा। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं तुम उसको ये आंसर देता कि जब भी कंपनीज कोई सिटी में डेटा सेंटर चालू करने का या कंपनी चालू करने का देखती है ना, तो प्रीवियस 100 ईयर्स की उसकी राइट हिस्ट्री देखती हो। अब राइट हिस्ट्री म्हणजे काय, इसका मैं बताता हूँ। राइट हिस्ट्री मतलब पिछले 100 सालों में उस पर्टिकुलर सिटी में कितना क्राइम रेट है, उस पर्टिकुलर सिटी में नेचुरल कैलेमिटीज कितने आते हैं, जैसे सुनामी, साइक्लोन, है ना, ये चीज है, और वो सिटी में क्राइम कितना है। दूसरी बात, उसमें दंगे फसाद होते हैं क्या? क्यों बोलो? ये सब कंपनी, हाँ, दंगे फसाद, ये कंपनीज क्यों देखती है दोस्त? उसका रीजन बताओ। तुम सोचो, वो जेफ बेजोस अपने अरबों डॉलर लगा रहा है एक डेटा सेंटर, एक कंपनी के लिए, एक सिटी में। अगर दंगे फसाद हुए कल को, है ना, अपने यहाँ पे ऑटो जला देते हैं, तो अगर डेटा सेंटर होगा तो डेटा सेंटर को छोड़ने वाले लोग? साइक्लोन आया तो पूछ के आएगा, ठीक है मैं तेरे डेटा सेंटर पे नहीं जाऊंगा। सुनामी आएगी तो पूछ के आएगी। कॉमन सेंस है ना। इसीलिए ये सिटीज में क्राइम रेट, अभी पुणे का क्राइम रेट बहुत कम है। नेचुरल कैलेमिटीज पुणे में आती नहीं है क्योंकि समंदर है नहीं। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ही कंपनी और डेटा सेंटर मिलेगा तुमको दोस्त। अब क्लियर है तुमको कंपनीज वाई दे प्रेफर डेटा सेंटर्स एट दीज लोकेशंस? क्लियर एवरीबॉडी? ऐसे ही पढ़ना है अपने को, ताकि वो जिंदगी भर के लिए क्लियर रहे।
चलो गुड, एनी क्वेश्चंस अभी तक के? अभी फिर आगे बढ़ते हैं ना क्लाउड पे। और क्वेश्चन है किसी को कुछ? अच्छा, तो ये अगर मैं ड्यूरेबिलिटी बोल रहा हूँ, तो ये जो जीरो डाउन टाइम मैंने बोला क्लाउड को, क्लाउड जो ये क्लेम कर रहा है कि मैं तुमको जीरो डाउन टाइम दूंगा, क्यों क्लेम कर रहा है ये? इसका एक कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट का नाम जानता है क्या कि ये जो जीरो डाउन टाइम अचीव होता है? अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, तुमने मुझे बोल बच्चन डाल दिया क्लाउड इज फुल्ली मैनेज्ड, इट ऑफर्स यू 11/9 ड्यूरेबिलिटी विद जीरो डाउन टाइम, तो मैं पूछूंगा चल ठीक है बता मेरे को जीरो डाउन टाइम मिलती कैसी है, हाउ डू यू अचीव जीरो डाउन टाइम? ऑटो स्केलिंग एक कंसेप्ट है, बट ऑटो स्केलिंग रन्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट? क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो वैसे। एक कंसेप्ट है क्लाउड में, क्या है? मोबिलिटी नहीं सूरज, वेल ट्राइड, बट एक कंसेप्ट है, क्या है ये? मैंने भी लास्ट में लिखा। किसी ने एचए का नाम सुना है? हाई अवेलेबिलिटी, वेरी गुड, असरार नोज इट। हाई अवेलेबिलिटी, अब मैं हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या, मैंने अभी बता दिया। अगर कुणाल के 3 पुणे के डेटा सेंटर के रैक जल भी गए नोट्स, तो भी कुणाल का डेटा रेप्लिकेटेड है ना बैंगलोर में और हैदराबाद में। मतलब AWS क्लाउड ने कुणाल को डेटा हाईली अवेलेबल करके दिया है, और वो भी ना डिफरेंट रीजन में। पुणे लाई करता है महाराष्ट्र में, हैदराबाद लाई करता है तेलंगाना में, बिकॉज इट गॉट सेपरेटेड रिसेंटली। तो जरूरी है क्या दोनों स्टेट में एक साथ भूकंप, बाढ़ और दंगे चालू हो जाए? और दो भी नहीं, 3 जगह अलग अलग कर रहे हैं ना, बैंगलोर में भी है मान लो, या फिर एक कोई नॉर्थ में है, ऐसे मान लो। समझ रहे हो? इसलिए ये अचीव कैसे होता है, किसी ने भी पूछा ना ये डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम अचीव कैसे होता है, तो सिंपल एक इसमें आंसर दोगे उसका एच है। ऑटो स्केलिंग वगैरह कुणाल हम लोग देखेंगे जब हम क्यूबरनेटिस स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वी आर गोइंग फ्रॉम एकदम स्क्रैच। किससे जा रहे हैं हम लोग? एकदम स्क्रैच। अच्छा, एक चीज हो गई। अब ना, अब अपनी मेन जो मैं तुमको बताने वाला था ना कि इसकी टर्मिनोलॉजीज और 2-3 दे रखी है लोगों ने, तो इसको बोलते हैं आस। क्या बोलते हैं इसको? आस। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये सुना होगा तुमने कहीं ना कहीं, तो सुना होगा, आई एम 100% श्योर। इसको बोलते हैं आस पास, और इसको बोलते हैं आस पास, और क्या होगा? एक सास। ये हमारी सास नहीं है, सासू माँ नहीं है, बट ये सास जो है ना, जैसे हमारे घर पे चलती है ना बहुओं के लिए, इसीलिए मार्केट में ये भी चलता है सास। अब Software as a service. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब तुम लोग मेरे को एग्जांपल दोगे इसका। बेयर मेटल जो है ना, बेयर मेटल, अभी कोई कोई कंपनी के रेज्यूम पे अगर इसके बाद तुमको बेयर मेटल या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लिखाई दिया ना, तो समझ जाने का कंपनी का काम किस पे है, किस पे, इस पे। अच्छा, अभी ये दो जगह ना तुमको हेक्टिक बहुत है। हेक्टिक एज इन इधर का सर्वर फेल हो गया तो इशू आएगा, इधर का डेटा लॉस आ गया तो इशू आएगा। अभी जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट, सो बैंकिंग डोमेन जो होते हैं ना, बैंकिंग डोमेन स्टिल ड्यू टू कंप्लायंस एंड गाइस हुएवर इज नॉट स्पीकिंग प्लीज। तर आपण लॉक सायकलला पण लावायचं होते. सो जो बैंकिंग डोमेन होते हैं ना गाइस, बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमेन, दीज गाइज विल स्टिल प्रेफर नॉट टू यूज ऑन क्लाउड। तो बैंकिंग डोमेन में अगर तुमको जॉब लगा तो तुमको ये दोनों आना चाहिए, इसलिए हम तुमको ये दोनों भी सिखाने वाले हैं। क्लाउड के साथ साथ हम तुमको ऑन प्रीमाइसिस टूल्स और टेक्नोलॉजीज पे भी काम करवाने वाले हैं, सो डोंट वरी। बट इसमें चैलेंजेस है ना दोस्ती। अभी जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट, आई यूज्ड टू वर्क देयर एज अ बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर देन अ ईयर। आई हैंडल अ लीडिंग यूएस बेस्ड क्लाइंट दैट वाज बेस्ड आउट ऑफ इंश्योरेंस डोमेन। तो उनका ना ऑन प्रीमाइसिस पे सेटअप था पूरा। अब एक दिन क्या हुआ, थर्सडे, आई थिंक थर्सडे एंड ऑफ द डे, हमारी शिफ्ट ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी, उनका डेटा सेंटर में से एक नोड जो है ना डाउन हो गया, पूरा नोड। अब वो नोड पे जितने भी जॉब्स थे ना मेरे, सब एवरी जॉब स्टार्टेड फेलिंग। अब साला प्रॉब्लम ही हो गया, उनके साथ उनके यहाँ पे क्रिसमस जोर शोर में मनाते हैं ना, और क्रिसमस में वहाँ पे कोई काम नहीं करते हैं।
अच्छा, तुमको क्या लगता है डेटा सेंटर में अपने जैसे लोगों को एंट्री मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कॉन्फिडेंशियल होता है वहां पे। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अ कर्नल। अब समझो तुम लोगों ने कर्नल की बेटी पे चांस मारा है, कर्नल तुमको आसपास भी भटकने देगा क्या करके? नहीं देगा, राइट? बिल्कुल। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है, तुमको अंदर अपने जैसे बंदों की वर्थ भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, और अंदर अपने को घुसने भी नहीं देंगे। और दूसरी बात तो ये तुमको बताएंगे भी नहीं कि डेटा सेंटर कहाँ पे, ड्यू टू, किसी ने बोला था, सिक्योरिटी रीजंस। तो इसमें सिर्फ CCNA, जुपिटर सर्टिफाइड लोग जा सकते हैं जिनको नेटवर्किंग अच्छा आता हो। तो वो जो नेटवर्किंग का बंदा था, डेटा सेंटर में सिर्फ 2 ही सर्टिफाइड बंदे थे, और दोनों भी छुट्टी पे थे। तो गाइज वी हैड टू वेट टिल मंडे। उसको टिकट, हमने चेंज टिकट क्रिएट किया, उसको कॉल किया, उसको मेल डाली, उसको रात में हम संडे के जगह के लाए, एंड उसको बोला कि भाई ये प्रोडक्शन का नोड मेरा डाउन हुआ है, सारे जॉब्स फेल हो रहे हैं, प्लीज आ, और ये एक सर्वर हमारा फेल हो रहा है, एक सर्वर खाली फेल हो रहा था, वो रिप्लेस करके जा। वो बंदा आया अंदर, कुछ तो भी वायरिंग वायरिंग किया, एक सर्वर निकाला, दूसरा सर्वर लगा के गया, एंड देन ही मैनेज टू फिक्स इट। बट इसमें मेरा प्रॉब्लम हुआ ना दोस्त, पोटेंशियल डेटा लॉस हुआ, ठीक है, मेरे को मेरी जॉब्स फेल हो गई। तो ये वाले इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमको नहीं, ये क्लाउड पे मैंने भी जाना। ऑब्जर्व किया है सर, यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली, अज्योर पे आने का मतलब ये नहीं कि पूरा 100% होता है वो। डेटा राइट, फेलियर डेफिनेटली होता है अज्योर की तरफ से, AWS की तरफ से, राइट। जिसके लिए ना अपने को उन तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। दैट इज करेक्ट। मैं डेटा लॉस तो नहीं बोलूंगा, देखो सर्विस प्रोवाइडर है यार, अभी देखो इनका भी खुद का डेटा सेंटर है, तो इनका भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी डाउन होगा। बट ये वाले ऑन प्रेम और बेयर मेटल से ना 1000 टाइम बेटर सर्विस देता है क्लाउड। क्यों? HA वगैरह दे रहे हैं ना तुमको। हाँ, अगर तुमको कुछ इशू आता है सेटअप वगैरह में, तो ऑफकोर्स यू कैन रेज टिकट टू देम। बट अगर जो स्पेशली ऑन प्रेम और बेयर मेटल पे काम करने वाले हैं ना, उनके लिए तो नाइटमेयर है दोस्त, अगर नोड वगैरह डाउन हो गया तो। इसीलिए क्लाउड अपनी लाइफ इजी बनाता है। तो अब मुझे एक एग्जांपल दो तुम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का तो मैंने बोल दिया कि बेयर मेटल बोलते हैं उसको। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, एक क्लाउड ने खुद का बनाया है कि नहीं बनाया है? तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं ना, AWS, एज्योर, GCP। क्यों? उनके पास खुद का इंफ्रा नहीं है, तुमसे मांग रहे हैं ये तीनों कुछ? तुमको बोला क्या भाई तू सेटअप करके दे, मैं कॉस्ट लगाता हूँ, ऐसे कुछ बोला उन्होंने? नहीं, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय देम। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल क्या रहेगा, सोचो थोड़ा। जीमेल। ईमेल सैस में आएगा। जीमेल वुड बी इन SaaS। अब मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक तुम लोगों ने बहुत ट्रेंडिंग अभी टूल चल रहा है, एक ओपन शिफ्ट, मतलब ट्रेंडिंग नहीं है, एंटरप्राइज क्यूबरनेटिस का टूल है। दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर क्यूबरनेटिस फ्रॉम रेड हैट। रेड हैट का एक टूल है ओपन शिफ्ट एंटरप्राइज। अब इसके अलावा सबसे एक बेस्ट एग्जांपल दूं तुमको, चैट जीपीटी। क्यों? अब मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, तुमको प्लेटफॉर्म दे रहा है, अपनी क्वेरीज तुम आओ, तुमको जो जो इशू आ रहा है वो डालो, और रेजोल्यूशन लेके खुद चले जाओ, है ना? सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या कर रहे हो तुम? बेसिकली चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। वैसे AWS हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। चैट जीपीटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक एग्जांपल दो। जीमेल है, सैंडबॉक्स है, जहाँ पे हम लोग को सिर्फ सर्विस लेनी पड़ती है, पे सबसे, करना पड़ता है। हाँ करेक्ट, सबसे बड़ा एग्जांपल। 100-200 रुपये महीना दो और चालू हो जाओ। कुछ करना है क्या? पिक्चर तुमने प्रोड्यूस की, स्क्रिप्ट तुमने लिखी, गाने तुमने गाए, नथिंग। और एक एग्जांपल दो इसका, जोमेटो, स्विगी। अब मान लो तुमको भूख लगी है, तो कंपनीज का ये जो इवोल्यूशन देख रहे हो तुम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे कंपनी कैसे पहुंची है, इसका इवोल्यूशन देख रहे हो क्या तुम? ग्रोथ कैसी हुई है, टेक्नोलॉजी बदली कैसी है। अब मान लो तुमको भूख लगी, आज संडे, ठीक है, तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अगर तुम्हारा कुछ प्लान रहेगा, अब मान लो तुम्हारी जो बंदी है उसको कुछ खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, भूख लग रही है तुमको, यू गाइस आर हंग्री। नाउ इमेजिन व्हाट इफ आई टेल यू कि ये तुमको खाना खाने के लिए ये पूरी खिचड़ी पहले से करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, अनाज उगाना पड़ेगा,
फसल काटनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। अगर तुम इधर हो तो तुम लोग ये प्रेफर करोगे कि डायरेक्ट तुम जोमेटो करके स्विगी से ऑर्डर करके डिलीवरी लेके खाना पसंद करोगे? ह्यूमन नेचर क्या है, अपनी कन्वीनियंस देखते हैं ना हम लोग। ऑफ कोर्स अब समझो तुमको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्यों चल रहा है। तो क्लाउड में ये तीनों आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, प्लेटफॉर्म भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, बट वो इंडिविजुअल सर्विस लेवल पे आता है, वो हम आगे देखेंगे। आपके लिए एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए समझ लो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वर्क्स लाइक, तुम लोगों ने क्लिक किया बस और सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी है। तो हम आगे ई केस देखने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम क्या देखने वाले हैं मालूम है? क्यूब देखने वाले हैं, क्यूबरनेटिस में। जेनकिंस हम देखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। ठीक है, और आगे हम लोग कुछ सर्विसेज होंगी जैसे सीक्रेट्स मैनेजर, वॉल्ट वगैरह, वो सब देखने वाले हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो मस्त, मतलब एक क्लिक मारो। अब जोमेटो और स्विगी में तुम क्या करते हो? एक क्लिक मारते हो और एवरीथिंग इज हैंडी, सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है गाइस, तो यार अभी यहाँ इसमें तक के, ये भी आएगा ना, सॉरी, जी बोलिए। सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी इसके अंदर ही आएगा ना, दैट सैस इज में? दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट ऑफ कोर्स या इट विल कम इन दिस, लाइक सैस में ना? फारगेट वगैरह। यस, हाँ जी, सर्वरलेस अभी चल रहा है, हाँ बट इट जी। विल टेक मोर 5 years टू फॉर कंपनीज टू माइग्रेट, एंड उसकी ओपनिंग्स एक 5 सालों के बाद निकलेगी धीरे धीरे। तो आई वांट यू गाइस, देखो अब ना मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है गाइस, इसकी वैल्यू किसको पता रहेगी सबसे ज्यादा? जिसने इधर और इधर काम किया होगा, उसको इसका वर्थ पता होगा। अब अगर मैं डायरेक्ट तुमको, अब हमारे जमाने में देखो, अब जो भी लोग खेती करते हैं हमारे किसान, उनका दर्द और उनकी तकलीफ हम जान सकते हैं कि क्यों नहीं, हमको रेडीमेड जोमेटो स्विगी मिल गया ना। अगर वही खेती, वही शेतकरी लोग जो करते हैं वो हम अगर करते तो हमको उस अनाज की कितनी वैल्यू होती, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग चालू ही इधर से करते हैं, इधर के पेन तुम लोगों को बताते हैं और फिर तुम लोगों को क्लाउड पे लेके आते हैं। क्यों? वो इशू पता चलना चाहिए कि क्या इशू था रियल टाइम में, क्यों कंपनीज ने डॉकर पे स्विच किया। अगर सर्वर पे काम चलता तो डॉकर की मेरे को जरूरत क्या थी? समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस के आंसर करते करते प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके तुमको बताऊंगा, और फिर तुम बोलोगे अरे यार सर अभी तो लाइफ बहुत इजी है। बस दोस्त, वो इजी कोई और इजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। सर लाइफ। और एक चीज है जिससे AWS क्यों इतना ज्यादा ट्रेंड में चलता है पता है, इतने ज्यादा मार्केट शेयर है उसके? बिकॉज इट इज ISO 27K सर्टिफाइड क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, और दूसरे दिन में मैंने जैसे डेमो में बोला था, अगर मान लो तुम लोगों को कंपनी बोलती है कि नहीं हमको एज्योर चाहिए और तुमको आता है AWS, तो अभी जैसे किसी के पास एक्टिवा है, किसी के पास जुपिटर है। अब एक्टिवा चलाने वाला जुपिटर चला सकता है नहीं चला सकता है? उस दिन भी मैंने नॉलेज बोला। अगर है, थ्योरी अगर ऑफ क्लियर है, कोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर है, तो कोर्स। डेफिनेटली। देखो, ब्रेक रहेगा, एक्सीलरेटर रहेगा, लाइट रहेगी, ये तो सेम चीज है ना। अंडरलाइन कंसेप्ट जो है ना, इसलिए समझा तुमने अभी मैंने ये 1-1.5 घंटे का जो बोल बच्चन ये इतना पूरा डाला है, ये वेस्ट किया, मतलब हमने टाइम इस पे ये क्यों किया है? बस ये चीज समझने के लिए कि ये चीजें होती क्या है। मैं डायरेक्ट आता, ये बड़ी बड़ी बातें तुमको समझाता, डाउन टाइम क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, HA क्या है, तो वैसी चीजें क्लियर नहीं होती। क्यों? हमने एक एक चीज का चैलेंज देखा, एक एक चीज का ड्रॉबैक देखा। ये टेक्नोलॉजी देखो, मैं ना लाइफ में एक चीज मानता हूँ, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। वैसे ही जो भी चैलेंज होते हैं ना इंसान को, हर नई टेक्नोलॉजी पुराने टेक्नोलॉजी का चैलेंज ओवरकम करने के लिए बनी होती है। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी परफेक्ट है, तो हम नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे ही क्यों? मेक सेंस, राइट? नई टेक्नोलॉजी तभी आती है जब पुराने टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई फ्लॉज ड्रॉबैक्स होंगे। तो उसका मतलब वो हमेशा ध्यान में रखो कि भाई ये क्लाउड आया तो क्यों आया। तो उसके पीछे ना ये दो नाम याद रखना है तुमको, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि बेयर मेटल, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि ऑन प्रेम, इन हाउस। अंडरस्टूड गाइस? क्लाउड क्लियर है? क्लाउड क्यों आया, मतलब सिर्फ वाई क्लाउड समझने के लिए हमको 1-1.5 घंटा लग गया। तो हम आगे भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ ये नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली भी प्रूव करके बताएंगे उसको, डोंट वरी। हमारे जो आगे लिनक्स वगैरह के जो सेशंस होंगे, उसमें सब कुछ प्रैक्टिकली भी क्लियर होगा तुम लोगों को, टेंशन लेने सर की जरूरत लिनक्स नहीं। जो है अभी हम्म। नॉर्मली उसमें सिर्फ वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होएगी हम लोग, या फिर उसके ऊपर लिनक्स क्या है वो सीखेंगे? हम लोग लिनक्स ना
प्रोडक्शन ग्रेड वाला लिनक्स सीखने वाले हैं। तो एक सर्टिफाइड और एक्सपर्ट ट्रेनर है जो तुम्हारा लिनक्स और क्लाउड लेगा, एक एक्सपर्ट ट्रेनर है जो सिर्फ एज्योर लेगा, एंड माय एक्सपर्टीज इज ऑन दीज थिंग्स। मेरे को ये सब कुछ भी आता है, बट अगर मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्ट अगर वो बंदा लेवे ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बट वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स, सो वी आर मेकिंग अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ देम। और अदर थिंग इज, हम लोग ना ऐसे टर्मिनल पे काम करने वाले हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग एक बारी गिट बैश इंस्टॉल कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लो, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लो। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना ये वाली बैच को गिट बैश पे ना पढ़ा के ubuntu WSL पे पढ़ा लूँ। तो हम लोग ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ेंगे। क्यों मालूम है, जब तुम Ubuntu रियल टाइम ubuntu में प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रोडक्शन पे भी लिनक्स पे ही प्रैक्टिस होती है ना दोस्त, तो ज्यादा मजा आएगा अपने को। ठीक है। AWS ना? हाँ, AWS कोई भी क्लाउड रहना दो, हम लिनक्स पे ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा। हमारा कुछ भी चीज इस पे नहीं रहेगा, क्या कहते हैं उसको, लोकल पे विंडोज पे कोई भी चीज नहीं चलने वाली हमारी। हम सारा सारा कुछ प्रैक्टिस जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट प्रोडक्शन ग्रेड सर्वर पे होता है, जो जो कमांड यूज होती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, ये वैसे चलने वाला है। इसलिए एट द बिगनिंग आई टोल्ड यू कि दिस वुडंट बी अ कॉलेज टीचर वाला वैसे काइंड ऑफ थिंग। इधर तुम लोग आओगे, तुम लोग प्रीवियस सेशन अच्छे से देख के आना, इशू है तो मुझे पूछ लेना ऑन द स्पॉट रुका के, एंड आई एम हियर टू आंसर। चैलेंज करो मुझे भी, एंड आई विल चैलेंज यू गाइस। इफ यू आर taking challenges, you will be able to take job within 6 months. And let me tell you one more thing, अगर 6 महीने की मेहनत या 5 महीने की मेहनत तुमको लाइफ में 5 साल आगे डाल सकती है, भेज सकती है, तो ये वर्थ नहीं है 5-6 महीने की मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, फर्स्ट सैलरी आई गॉट वाज 8,000। ठीक है। एंड बिफोर दैट आई वाज गोइंग एज अ इंटर्न गाय इन बानेर, जिधर वो मेरे को एज अ स्टिपेंड 5,000 देवर पेइंग मी। मेरा तो उतना तो पेट्रोल में ही चला जाता था, ऑनेस्टली बताओ। सो वन फाइन डे माय ग्रैंडमदर was talking to me, and she told me that you leave the job. I said why? She said me that you are a college ranker, you are an MS graduate, and still you did not manage to run like earn more than 15-20K. उन्होंने मुझे एक बात बोली guys, she told me, and she was like, understand यार, we come from a conservative background जहाँ पे हमारे बड़े जो होते थे वो they were not that much educated. I knew the fact कि IT में as a fresher भी घुसना कितना मुश्किल था, तो that was worth for me. But she said one thing to me which was quite very well said. She said to me that अगर तू मजदूरी का भी काम करेगा ना कहीं पे, तो इससे डबल लेके आएगा, समझ रहे हो? इट्स नॉट दैट कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की, इट्स जस्ट दैट शी सेड मी कि बीइंग अ एमएस ग्रेजुएट यू आर नॉट एबल टू अर्न लाइक 15-20K। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स लोग जो होते हैं हमारे, लाखों रुपया कॉलेज में खर्चा कर देते हैं टिल वी बिकम ग्रेजुएट्स। 22-23 साल के हम जब हो जाते हैं, बट हम वो 23 साल के बाद ना हमको 15-20 हज़ार की भी जॉब नहीं लगती है। एंड दिस इज अ रियलिटी चेक, हाँ फैक्ट है, ये मेरे साथ भी हुआ है। सो अभी मैं बताता हूँ, जितना मेरा टेक महिंद्रा छोड़ते समय सैलरी था ना, जो भी 20-25,000, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई विल बी ऑनेस्ट हियर, अब उससे ज्यादा तो मेरा टैक्स कटता है। तो बी लाइक दैट, Wow, great, बी लाइक great, दैट, great, बट great. आई टेल यू वन मोर थिंग, बट इन ऑर्डर टू रीच योर दिस मार्क राइट, फिर वो तुमको थोड़ा सा सोशल लाइफ से कट होना पड़ेगा। डेली यू हैव टू डेडिकेटेडली गिव 1 hour टू यू। एंड जब मैं करने के लिए बैठा था ना दोस्त, मुझे कोई नहीं था ये समझाने वाला। हर चीज ऑनलाइन स्ट्रगल करते करते मेरा अप्रोच ही बहुत डिफरेंट है चीजों को समझने का। तो ये सब स्ट्रगल करते करते आए। और एक बात बताता हूँ, वो 5-6 महीने की जो मेहनत होती है ना, डेफिनेटली 5 साल आगे डालती है तुमको लाइफ में। कई दफा ऐसा होगा कि तुम्हारे मैनेजर से ज्यादा तुमको सैलरी रहेगी होपफुली। व्हेन आई वाज लीविंग कॉग्निजेंट, these guys were ready to retain me, and that time I know my manager had 18 years का fucking experience, he was a Linux master, and that time I came to know, जब उसने मुझे CTC पूछा कि तुझे दूसरे कंपनी में क्या ऑफर कर रहे हैं, and I said him a number, and he was like, dude, मेरे को भी इससे कम मिल रहा है। and I was like, what? And I was having around 3 to 3.5 years का experience at that time, and that guy had around 18 years का experience। तो अभी तुम समझ रहे हो, एक्सपीरियंस का वर्थ नहीं है, तुम लोग कौन से स्किल सेट, कौन कैसा नॉलेज है तुम्हारा, वो तुमको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। सो ऑलवेज हैव दिस अप्रोच। और ये 5-6 महीने की जो मेहनत है ना, ये तुम पे है दोस्त। मैं आऊंगा, मैं चीजें बताऊंगा,
मैं चला जाऊंगा, मेरे से कितना नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, कब करना है, उसको कैसे यूज करना है, अब ये तो तुम्हारे ही हाथ में, किसमें कितना पोटेंशियल है, हाउ कैन आई जज दैट, है ना। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अब हमने वाई क्लाउड समझ लिया, अब समझते हैं कि कंपनी में तो साला देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जब भी लैपटॉप यूज किया है तुमने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है? मैं बस ओवरव्यू लूंगा, ठीक है। ये जो विंडोज, लिनक्स, हाँ ये जो डॉक्स, लिनक्स, मैक, हाँ मैं ये बोल रहा विंडोज। था, गुड गुड, मैं ये बोल रहा था कि ये जो लिनक्स हो गया, क्लाउड हो गया, इसके और इन डेप्थ सेशन होने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, मैं बस तुमको ओवरव्यू कवर करवा रहा हूँ कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों आए थे हम लोग यहाँ पे, क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब लिनक्स के भी इन डेप्थ सेशन हो गए, तुम्हारा ट्रेनर लेगा वो, डोंट वरी। अभी बताओ, लिनक्स जो है, तुम लोग को मैंने क्वेश्चन पूछा कि तुम लोग किस पे काम करते हो, अब मैं भी किस पे काम कर रहा हूँ, विंडोज पे। बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी इन लोगों को क्या चुल मची है जो ये लोग लिनक्स लिनक्स चिल्लाते रहते हैं? लेट्स सी हु कैन आंसर इट। अरे ओपन सोर्स। वाह वाह दोस्त वाह, क्या बंदा है यार, ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर देता है। वी हैव अ वेरी गुड ऑडियंस हियर, अप्रिशिएट दैट। ओपन सोर्स, अब इसका ना मैं तुमको काउंटर आंसर दूंगा दोस्त, टेंशन मत लो। ओपन सोर्स बोला है इसने, और एक क्या बोला है, सिक्योर बोला है, मल्टी यूजर तो ये भी है, एक मिनट, सिक्योर बोला है, मल्टी यूजर बोला है। अब और दो, जितने तुम्हारे माइंड में आंसर आते हैं दो, फिर Redundant. रिडंडेंट, और दो आंसर दो। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, लिखता हूँ जो भी बोल रहे हो लिखता हूँ, कमांड लाइन, ठीक है। चलो जो बोलोगे वो लिखूंगा यार मैं, चलो तुमसे थोड़ा हार्डवेयर सीखता हूँ। कंपेबिलिटी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो इसमें भी होता है, ठीक है, वो भी लिख दिया। क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि यार, रिलायबिलिटी। मतलब अब देखो ना, इसका एग्जांपल तो वैसे ही हो गया ना। एक एग्जांपल बताऊं तो, जो लो लड़की, मेमोरी। हाँ अभी इसको एक एग्जांपल से समझ लो। अब एग्जांपल ऐसे देता हूँ, कॉलेज में ना ढेर सारी लड़कियां होती है, और सिमिलरली ये फीमेल के लिए भी जाता है, बट कई फीमेल ऑफेंड ना हो जाए मुझ पे, इसलिए मैं हमेशा लड़कों को घसीटता हूँ बीच में। देखो, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी होती है, राइट, बट हमारा दिल जिस पे आता है हम उसी को चूज करते हैं ना, है ना। कॉलेज लाइफ में तो एटलीस्ट ऐसे ही हुआ, मैं तो ऐसा ही था, मुझे तो ऐसे ही चीज पसंद आती थी कि मेरा दिल जिस पे आ गया बस, उससे आगे और 10 गुना भी अच्छी अगर बंदी दिख जाए मुझे, तब भी मुझे तो वही पसंद रहेगी, था ना ऐसे। और आई एम श्योर बाकियों की लाइफ में भी मोस्टली ऐसे ही होता होगा, द थिंग विच यू लाइक इज क्लोज टू योर हार्ट। बट ऑर्गेनाइजेशन में ना भाई, इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है, इधर प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज चलती है। तो सिर्फ ये लिनक्स नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए कंपनी यूज कर रही है, ये रीजन नहीं है उसके पीछे का। अब मुझे एक बात बताओ, ओपन सोर्स यानी कि फुकट, करेक्ट है ना, मैंने उसको हिंदी टर्म में एक अच्छा वर्ड दे दिया, और फुकट। तुमको क्या लगता है, अभी मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ तो मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, क्लाउड ये सॉरी विंडोज यूज कर रहा हूँ तो पैसे दे रहा हूँ, ये फ्री में यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। प्री इंस्टॉल्ड है ना आपके लैपटॉप के ऊपर पहले से। प्री इंस्टॉल्ड ही है बट फ्री है ना मेरे लिए तो। हाँ फ्री है। हाँ तो फिर तो लिनक्स भी फ्री और विंडोज भी फ्री है, फिर क्यों कंपनी गई यहाँ पे, अब बताओ। अब ये वाला टॉपिक अभी टच नहीं करते हैं। अब मल्टी यूजर, यहाँ से मैं जाके दूसरा अगर यूजर बनाऊं, यहाँ से साइन आउट कर दूं और दूसरे यूजर से लॉग इन करूँ, तो विंडोज में मल्टी यूजर सपोर्टेड है नहीं है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूज वी नीड टू हैव लाइसेंस फॉर विंडोज। दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के यूज में लिनक्स के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ओपन सोर्स लिनक्स यूज नहीं होता है वहाँ पे रेड हैट के सर्वर्स होते हैं, सेंटोस के सर्वर्स होते हैं, हम लोग कुछ देर में आएंगे वहाँ। अभी ओपन सोर्स तो विंडोज भी है, फिर क्यों लिनक्स चाहिए, मल्टी यूजर तो विंडोज भी है, फिर क्यों लिनक्स चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी सर्विस। अरे वो तो विंडोज में भी है। स्टेबिलिटी तुमको क्या लगता है विंडोज में नहीं है? सीएलआई तुमको क्या लगता है पावर शेल और सीएमडी विंडोज में नहीं है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है? अब बताओ, अब आंसर करो, ऐसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ऐसे ड्रिवन होगा। अगर तुमको 18 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज चाहिए, तो तुमको क्या लगता है इतने छोटे मोटे बोल बच्चन देने पे वो कन्विंस हो जाएंगे और तुमको दे देंगे 15 लाख 20 लाख, ऐसे ही दे देंगे। लो कॉस्ट इसमें देन विंडोज। लेटेंसी कम होती है, कनेक्टिविटी ज्यादा होती हाँ, है ना। अब थोड़ा सा ऑन पॉइंट चल रहे हो,
बट उसके लिए ना एक टर्म है, सोचो और थोड़ा सोचो। रिडेंडेंसी। नहीं, लेटेंसी वगैरह तुमने बोला उससे रिलेटेड है, क्लोज क्लोज है, मतलब तुम लोग पता नहीं बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे। उसका सबसे सेफेस्ट आंसर ही है, Linux is so powerful operating system that it can handle more than 120 plus cores। एक मशीन पे 120 प्लस कोर्स के साथ काम करता है वो, यानी कि प्रोसेसिंग पावर इतनी तगड़ी है ना उसकी, इतनी तगड़ी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। दिस इज नॉट अचीवेबल इन विंडोज। और लिनक्स पे एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी है तुमको, काली लिनक्स है, फिर वो अंदर और एक एसी लिनक्स है, वो सब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फंडा है, जब हम लोग अंदर जाएंगे काम करेंगे। और लिनक्स ना तुम्हारे विंडोज के जैसा यूजर फ्रेंडली नहीं है। लिनक्स डिजाइन हुआ है अंदर प्रोग्राम से बात करने के लिए। तो प्रोग्राम से कौन बात करता है उनमें? एक चाचा होते हैं, और वो चाचा का नाम क्या है कौन बोलेगा मुझे? जो अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है। क्या बात है जम्बॉक्स ईश्वर। सर्वर। ईश्वर तो भैया बहुत बढ़िया है। कर्नल, ये कर्नल कैसा स्ट्रिक्ट होता है अपना आर्मी मिलिट्री वाला, बस ये कर्नल भी वैसे इसके नीचे हार्डवेयर रहता है और ऊपर सॉफ्टवेयर होता है। ये हार्डवेयर से बात करके सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, सॉफ्टवेयर से बात करके हार्डवेयर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कर्नल बैठा हुआ होता है। अब समझा, अब एक लाइन में आंसर मिल गई तुमको ये सारी चीजों की, मिली नहीं मिली? अब समझा कंपनी लिनक्स पे क्यों गई है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। लिनक्स ओएस, विंडोज ओएस। अगर मेरे को लेट्स से इंटरव्यूअर आस्क्स यू, वैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्त, ये कभी इंटरव्यू में होगा नहीं, बट नॉलेज हमको स्क्रैच से देखना है, चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, अब तुमको क्या लगता है, अगर लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का तुमको डिफरेंस पूछा, क्या बोलोगे तुम? तो विंडोज विंडोज यूजर फ्रेंडली। नहीं, इसके लिए तुम बोलोगे विंडोज इज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलोगे? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और लिनक्स अगर किसी ने पूछा ना, इनिशियली जो लिनक्स डिजाइन हुआ था ना, ये मिलिट्री वालों ने डिजाइन किया था। किसने? इट इज अ मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस। और ये कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। तो इनको पता है, किसी ने भी तुमको बोला होगा, अभी जैसे मैंने टर्मिनल ओपन कर दी, इसको समझ लो ये मेरा लिनक्स टर्मिनल है, ये मैंने यहाँ पे ls की कमांड मार दी। ये कमांड जो वर्ड आया, ये कमांड कमांड किधर होते हैं? तुमको नहीं लगता है मिलिट्री में कमांड्स होती है? ये सब मिलिट्री वाले एक दूसरे को कमांड देते हैं। तो ये लिनक्स जो वर्ड आया ना, ये यूएस के मिलिट्री ने डेवलप किया है। इसीलिए ये मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से ये बहुत तगड़ा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है, और ये मोर देन 120 कोर सपोर्ट करता है। तो जिंदगी में इसके बाद किसी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे ना, तो तुमको आंसर सिंपली ये चीजें करनी है। इजी टू अंडरस्टैंड गाइस? है कुछ क्वेश्चन अभी? अब ना थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं लिनक्स के। अच्छा, ये तो इसके साथ साथ और एक चीज है, लिनक्स विंडोज के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट है। मतलब जो लैग, जो इश्यूज, जो स्लोनेस हमको विंडोज पे मिलती है ना, लिनक्स के टर्मिनल पे कभी नहीं मिलेगी वो स्लोनेस वगैरह, अगर इंटरनेट स्टेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, अब लिनक्स में ना काफी अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। लिख लेता हूँ यहाँ पे, फेडोरा, BSD, सूजे, और मान लो अदर्स में थोड़ा सा, अदर्स में मतलब कस्टम वाले, ये अपने काम के नहीं होते। किसी को पता है फेडोरा के अंदर क्या क्या आता है? नाम सुना होगा तुमने, सेंटोस। सेंटोस को सेंटोस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें और एक आता है रेड हैट। क्या आता है? रेड हैट। अब हम जिस पे काम करने वाले हैं ना, हम काम करने वाले हैं डेबियन पे, विच इज अ BSD प्रोडक्ट। डेबियन पे, डेबियन में क्या आता है, इसका भी नाम सुना होगा तुमने, अबंतु। क्या? अबंतु। और सूजे का? सूजे। अब देखो इनका डिफरेंशिएशन क्या है। अब जैसे विंडोज का ना क्या होता है ना,
विंडोज का एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल गेट्स ने बना दिया, विंडोज 10 11 12 13, ये जो भी है ये गाड़ी विंडोज 7 से 5 से 4 से चलते आ रही है। विंडोज एक्सपी यूज करते थे हम लोग बचपन में, अब हम लोग विंडोज फाइनली 11 पे है। लिनक्स वाले केस में ना दोस्त उल्टा है। लिनक्स वाले में ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी एग्जांपल से समझते हैं उसको। महिंद्रा कंपनी मालूम है ना तुमको? जैसे टेक महिंद्रा उसका आईटी फर्म है, वैसे महिंद्रा मोटर्स भी है, टाटा मोटर्स भी है। अब महिंद्रा की काफी गाड़ी है, जैसे स्कॉर्पियो है। अभी लेटेस्ट में ट्रेंड में महिंद्रा की कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा चल रही है? थार। वेरी गुड, जीप थार। निकाली है महिंद्रा वालों ने। जीप है, थार है ना? तो कंपनी एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है कि नहीं? गाड़ियां अलग अलग है कि नहीं? सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडोरा, बीएसडी, सूजे। ये याद नहीं रखना है तुमको। क्या याद रखना है? सेंटोस, सेंटोस, रेड हैट, अबंतु। अब कौन सा वाला कौन से केस में यूज करना है? एक्सयूवी, यस। कौन सा वाला कौन से केस में यूज करना है? तो ये दोनों जो होते हैं ना, सेंटोस और रेड हैट, ये मोस्टली यूज होते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। क्यों? ये फ्री है, ये भी फ्री है। वैसे तो ये भी फ्री है, बट प्रोडक्शन में इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। अब वो लाइसेंस लेने के बाद क्या होता है क्या नहीं, उसकी कॉस्ट कैसे बढ़ती है, उसमें कैसे टिकट रेस करते हैं, ये सब सेशन के एंड में आईटीआईएल में तुमको बताया जाएगा। और ये जो होता है ना, अबंतु क्यों यूज करते हैं? अबंतु इज द किंग इन वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे, इंजीनियरिंग डिप्लॉय करने हैं हमको। तो क्योंकि हम वेब सर्वर्स पे काम करने वाले हैं, 3 टियर एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं, इसलिए तुम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोल सकते हो कि मैंने अबंतु में काम किया है, मैंने रेड हैट में काम किया है। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे sudo yum ऐप की कमांड चलती है, यहाँ पे sudo yum की कमांड चलती है। आगे वो हम देखेंगे डॉकर के समय ना, मैं तुमको अबंतु भी लेके बताऊंगा और मैं तुमको सेंटोस भी लेके बताऊंगा। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये जितनी भी चीजें तुमको कहाँ पे मिलती है? क्लाउड में, फोकट। ओपन सोर्स है ना, फोकट। कुछ करना है क्या तुमको? कुछ बनाना है क्या? नहीं। अच्छा, अब समझा वाई लिनक्स, लिनक्स के कितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वाई डू वी यूज लिनक्स? एनी क्वेश्चंस इन लिनक्स एंड क्लाउड? नो? जब प्रैक्टिकल करेंगे ना सर, तब थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। हाँ, बट अभी एक ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग से चीजें क्लियर हुई ना, हाँ जी, कि थोड़ा सा लिनक्स, क्लियर हुआ है, हाँ थोड़ा लिनक्स क्यों कंफ्यूजन हम है। यूज होते थे, क्यों करते थे। ऑफकोर्स पहली बार अगर ये टर्म सुन रहे होंगे तो कंफ्यूजन रहेगा ही, बट अगर 1 महीने के बाद मैं तुमसे मिलूँ ना, ट्रस्ट में, यू विल बी सो मच लाइक, क्या बोलते हैं, बिगनर लेवल के एक्सपर्ट तो तुम बन ही जाओगे लिनक्स एंड ये टूल्स में। गुड। ईश्वर सेज इज क्लियर। अब ना एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, ये सारी चीजें अपने को एक जगह मिलेगी, AWS। तो AWS का ना आज घर पे जाके एक चीज करनी है तुमको। वो चीज ये है कि तुमको क्रिएट एन AWS अकाउंट पे जाना है। AWS के काउंसिल पे जाओ, क्रिएट एन AWS अकाउंट पे जाओ, अगर तुमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो 12th मंथ, 12 महीने का ना फ्री टियर का अकाउंट ये बना के देता है। इधर तुम्हारा ईमेल एड्रेस डालो, अकाउंट नेम डालो, ठीक है। वो बाद में ना तुमको कार्ड डिटेल्स वगैरह पूछेगा, है ना? तुम लोगों ने आई एम श्योर ये पेज भरा तो होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में। जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ, क्लाउड वर्ल्ड डाल देता हूँ जैसे। अभी मेरे को ईमेल वीमेल भेजेगा, फिर मेरे को कार्ड वार्ड डिटेल, ये मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है इसलिए मैं इसमें बना रही ना हूँ। आप एक बार ना जाके अकाउंट बना देना AWS का। तो AWS का अकाउंट जब बनाओगे ना, अभी मैं बताता हूँ, हम लोग के पास ना क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट्स। क्योंकि AWS में मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पड़ता है अपने को, पे एज यू गो मॉडल फॉलो करता है। कुछ कुछ सर्विसेज फ्री नहीं है इसकी, जो हम लोग आगे क्यूबरनेटिव्स के लिए करने वाले हैं ना दोस्त। क्यूबरनेटिव्स के लिए सारी पेड सर्विसेज पे काम करेंगे हम, जैसे प्रोडक्शन ग्रेड में होता है वैसे ही। तो हम लोगों को उसके लिए क्या लगता है, जितने घंटे तुम यूज करोगे उतना तुमको उसका चार्ज क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बट हम नहीं चाहते कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे क्लासेस की भी फीस भरे और उधर भी पैसे अननेसेसरी इतने सारे वेस्ट करें। तो हम उनके लिए एक ना ये प्रोवाइड करते हैं, बताता हूँ। तो ये मैं आ गया
AWS के कंसोल पर। ये तुम आ गए देखो तुम्हारे वर्चुअल डेटा सेंटर में, तुम खुद का डेटा सेंटर बना रहे हो यहाँ पे। ये हम ना नेक्स्ट वीक देखेंगे EC2 की सर्विस AWS में क्या होती है। तो ये मैं आ गया मेरे EC2 के डैशबोर्ड पे। अब अगर मैं इधर आऊँ, बिलिंग एंड कॉस्ट में जाऊँ, सारी जो पेड सर्विसेज है ना, वो भी तुमको फ्री में सीखने को मिलेगी यहाँ पे। कैसे, वाई? देखो ये 1 साल के लिए फ्री तो रहेगा, बट मैंने क्या बोला था, हर बार हर सर्विस फ्री नहीं देगा AWS, है ना। कुछ कुछ सर्विसेज वो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, वो फ्री नहीं होती है। देखो इतना हमारा कट गया है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रेडिट्स है। हमारे पास, हम $300 के क्रेडिट के एक फॉर्म में तुमको शेयर करूंगा। आई शो यू हाउ टू फिल दैट फॉर्म। आई शो यू हाउ टू गेट क्रेडिट्स फ्रॉम AWS। यू विल गेट दैट क्रेडिट्स फॉर 6 मंथ्स। $300 का क्रेडिट होगा तुम्हारा, आउट ऑफ विच $265 मेरे पास बचा है अभी भी। तो जैसे जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे वैसे मेरा इधर कटते जाता है। तो वो भी एक फायदा हम तुम्हारा करा के देने वाले हैं कि वी विल लेट यू नो हाउ टू अप्लाई फॉर $300 क्रेडिट। बट आई वुड रिकमेंड कि एवरीबडी गो टुडे क्रिएट अकाउंट ऑन AWS, बिकॉज नेक्स्ट वीक के सेशंस पूरे तुम्हारे क्लाउड और लिनक्स बेस्ड होने वाले हैं। तो अकाउंट बना लो, एंड नेक्स्ट वीकेंड पे मोस्टली आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई फॉर AWS क्रेडिट्स। ओके, सो क्लियर टुडे कि व्हाट इज cloud, why Linux, why we are here. Everybody, if you have any questions, feel free to ask me. Clear. Thank you so much. कोई डाउट्स है, कोई कंसर्न्स है तो पूछ सर लो। AWS का न्यू अकाउंट जब क्रिएट करते हैं ना सर, हम्म। पहले वहाँ पे स्टूडेंट और पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं था, नहीं किए तो भी सेटअप ये ओपन होता था, लेकिन अभी वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है ऐसे। डॉक्यूमेंट किस चीज के मांग रहे हैं? मीन्स पेन ड्राइव, सॉरी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। दे दो, क्या दिक्कत है? फिर बाद में वैसे बिलिंग। नहीं, तो हाँ। बिलिंग बिलिंग खुद से नहीं कटेगा कभी, डोंट वरी। ऑटो बिलिंग डिसेबल होता है। दूसरी चीज, $300 में से सोचो, मैं तो इतना पढ़ा के और प्रैक्टिस करके मेरा $4-5 गया है। आपका तो ओके। $1-2 भी नहीं जाएगा पूरे साल में। हम्म। क्योंकि कुछ ही सर्विसेज है जो पेड सर्विसेज हम यूज करेंगे, वो भी जब हम क्यूबरनेटिस एडवांस टॉपिक चालू करेंगे ना, तब। उसके हम्म। पहले तक हम सब कुछ फ्री वाले ओपन सोर्स पे ही करने वाले हैं। सिर्फ EKS नहीं, के टाइम पे, राउट 53 के टाइम पे अपने को लगेगा वो नहीं, क्रेडिट्स। पहले स्टूडेंट का एक ऑप्शन आता था, अभी इंडिविजुअल वो आ रहा है, तो वो कौन सा चॉइस करना है? एज्योर में आता है स्टूडेंट वाला। AWS में तुम प्रोफेशनल पर्सनल अकाउंट खोलो, स्टूडेंट ओके। वाला मत खोलो। क्योंकि हम ना ओके। एज हाँ। अ कंपनी की डिटेल डाल के क्रेडिट लेने वाले हैं। वो क्रेडिट का फॉर्म मैं अगले वीकेंड पे शेयर करूंगा, और मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है। बट उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारे पास अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट थोड़ा यूज्ड होना चाहिए, तो क्रेडिट जल्दी ओके। मिल जाता है। हाँ सर, एक्चुअली मैंने पहले एक अकाउंट किया था, तो फिर उसका फ्री ट्रायल हो गया है, तो फिर दूसरी ईमेल आईडी से खोलना पड़ेगा क्या? हाँ ऑफ कोर्स, दूसरा ईमेल, दूसरा कार्ड, मूव ऑन। ओके ओके। क्या सर हम AWS में लैम्बडा लर्न करने वाले हैं क्या? और डेवॉप्स के लिए फिलहाल लैम्बडा नेसेसरी नहीं है, दैट इज यूज्ड फॉर ऑटोमेशन। एज अ सप्लीमेंट्री अगर तुमको यूज करना है और लर्न करना है तो तुम कर सकते हो। बट लैम्बडा इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इजी। तुमको लैम्बडा फंक्शंस फिर वो स्क्रीन शेयर करके लिखने लगाएंगे इंटरव्यू में। सो बेसिक कुछ अच्छा पढ़ के पहले जॉब ले लो, एंड देन अंदर जॉब। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जॉब लेते लेते सब कुछ सीखो यार। एक बार जॉब मिल जाए, टारगेट क्या होना चाहिए? जॉब लेने का। पढ़ाई हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं है। कितना पढ़ने से और जॉब लगेगी वो हमको देखना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ते बैठना है हमको, राइट। और बहुत कम प्रोजेक्ट्स है जिसमें लैम्बडा यूज होता है। रिकॉर्डेड से लेक्चर्स कब मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको कब चाहिए संकेत? अभी तुरंत दे देते हैं हम। सर इस सर ये कोर्स यूट्यूब के ऊपर जाएगा या फिर हमको सेपरेटली मिलेगा पर्सनल रिकॉर्ड? पर्सनल पर्सनल मिलेगा तुमको। ड्राइव पे अच्छा शेयर की जाएगी तुमको लिंक, वो एडमिन टीम से कनेक्ट कर लो, दे विल शेयर इट विद यू। अच्छा। सर इस कोर्स में कितने प्रोजेक्ट्स होंगे? दोस्त अभी हम लोगों के पास में 3 tier एप्लीकेशंस है, फिर और 2-3 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है आर्गो सिटी में जो यूज करेंगे। तो एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट में तो तुम्हारा लाइव हैंड्स ऑन, प्रोडक्शन ग्रेड हैंड्स ऑन हो जाएगा जब तक तुम कोर्स खत्म करोगे। स्वराज, टू आंसर योर क्वेश्चन। सर इसमें भी अवेबिलिटी सेट और अवेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट है क्या? एग्जैक्टली।
हम जितने चीजें डिप्लॉय करेंगे, जो तुम्हारा वीपीसी का सेशन लेगा ना, हाँ जी। क्लाउड का ट्रेनर, उसमें सब क्लियर होने वाला है, सबनेट, ओके। अवेलेबिलिटी जोन, वीपीसी, एवेबिलिटी जोन, एवेबिलिटी सब। एवरीथिंग एवरीथिंग। हाँ जी। तो कुणाल लोड का बैलेंसर भी होगा ना इसमें? ऑफ कोर्स हम लोग लोड बैलेंसर, आगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करने वाले हैं, विच वी विल डिप्लॉय ऑन टॉप ऑफ इनग्रेस। तो वो अच्छा। क्यूबरनेटिव्स के टाइम कवर होगा। अच्छा। जो सर्विस क्यूबरनेटिव्स के टाइम कवर होगी ना, वो हाँ जी। तुम्हारा क्लाउड का ट्रेनर कवर नहीं करेगा, वो मैं कवर करूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो एक तीर से दो निशाने करेंगे ना हम। क्यों? हाँ जी। उसका रीजन ये है, हमको जल्दी जॉब लेना है। बराबर तो एक ही सर्विस को दो बार पढ़ाने का मतलब है क्या? बराबर। ये टाइम, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुमको गड़बड़ होनी चाहिए यार जॉब लेने की। एक्चुअली ऑलरेडी मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ सर, लेकिन थोड़ा हेक्सावेयर में भी हो गया मेरा सिलेक्शन। ओके। एग्जावेयर तो बहुत इजी इंटरव्यू होता है। दे वर ऑफरिंग मी 18, तो आई डिड नॉट जॉइन देम 2 years बैक। हाँ जी, लेकिन थोड़ा मैं आपको कॉल करूंगी उसके लिए फिर। या श्योर, मतलब ये मैं तो रेकमेंड वही करूंगा, जब तक फुल्ली प्रिपेयर्ड ना हो जाओ ना, तो थोड़ा सा रुकते हैं। आप एक बार प्रिपेयर हो जाओ, देन यू स्टार्ट विद द इंटरव्यू। आई हैव नो इश्यूज इन दैट। प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई कोर्स एडिशनली लर्न करने के बाद कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या? ये तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई कोर्स, अब तुमको करना डेवऑप्स है, तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई कोर्स करने का मतलब मुझे नहीं पता। क्रिकेट खेलते खेलते खाना खा सकते हैं क्या? मतलब बैटिंग कर रहे हो और खाना भी खा रहे हो, पॉसिबल है? नहीं है। सिमिलरली दिस एंड दैट थिंग इज कंप्लीटली नॉन रिलेटिव। हाँ, अगर जॉब मिलने के बाद तुमको कुछ एडिशनल करना है, तो देन फॉर श्योर गो फॉर इट। ठीक है कुणाल? ओके। करण सेज कैन वी पुट दैट प्रोजेक्ट इन रेज्यूमे? ऑफ कोर्स। वो प्रोजेक्ट ही तो तुमको रेज्यूमे में जो मैं बताऊंगा वही तो बताना है इंटरव्यूअर को, कि भाई मैंने ये काम किया है, मेरे प्रोडक्शन पे ये चलता है, बस। ठीक है। सर कैन वी गेट योर नंबर? या यू गिव मी योर ऑफर लेटर एंड आई विल गिव यू माय नंबर। तुम तुम्हारे ऑफर लेटर मेरे नंबर पे पेस्ट करना, व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है संकेत? वैभवी सर मुझे आज ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज वर्ड्स पहली बार सुने हैं, ये सब इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। सो वैभवी, मैंने कोशिश की थी कि जितना मतलब ग्राउंड लेवल पे आके मैं समझा सकूं, उतने मैंने कम टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं फॉर पीपल लाइक यू। बट हाँ, ग्रेजुअली ना ये सेशंस में हर बारी तुम सुनते रहोगी ये वर्ड्स। तो जब तुम सुनते रहोगे ना, तो तुम खुद यूज टू हो जाओगी एक टाइम के बाद में। जैसे मैंने बोला, मेरी एक पिछली बैच की एक स्टूडेंट है जिसने लैपटॉप भी खोला नहीं था कभी जिंदगी में। यू कैन चेक विद एडमिन टीम, और तुम चाहिए तो उससे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट करके भी फीडबैक ले सकती हो। वो बंदी ने ना लिटरली सबसे पहले क्लस्टर डिप्लॉय करके दिखाने वाली बंदी वो थी, प्रीवियस बैच की। और अभी तक शी इज प्रैक्टिसिंग रियली वेल, शी इज प्रोग्रेसिंग रियली वेल। ठीक है। सर आपका नंबर मिलेगा क्या? हाँ, आप मेरे को एक बार ऑफर लेटर ले आ जाओ, जॉब ले लो आप, एंड फॉर श्योर हम पर्सनल मैं खुद मिलूंगा यार तुमसे, डोंट वरी। बट मेरी एक कंडीशन है ना, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करके तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, इवन आई वांट सम रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। आई विल बी मोर देन हैप्पी व्हेन यू गेट ऑफर। आई विल पर्सनली मीट यू, हम पार्टी करेंगे सब मिलके, डोंट वरी। विजय, ठीक है दोस्त। तो और कुछ क्वेश्चंस है और वी आर गुड टू रैप अप। इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, लेट्स कनेक्ट नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है। सर ये जो क्लासेस, बस लास्ट क्वेश्चन है मुझे, अपनी जो क्लासेस रहेगी AWS की, ये वीकली रहेगी या फिर मतलब एवरीडे रहेगी? अब देखो यार, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो ना लिनक्स और AWS, तो मैं वो ट्रेनर को हम लोग इंसिस्ट करके वीकडे में भी लेने लगाएंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा तो सेशन वीकेंड ही रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं एक साथ दो दो प्रोजेक्ट में अकेला लीड करता हूँ और काम करता हूँ, तो मेरे को वीकडे में यार बहुत हेक्टिक होता है। बट हाँ, अगर तुमको क्लाउड और लिनक्स कैसे चाहिए कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, फिर हमारा एक्चुअल डॉकर वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो फिर यू कैन टेल मी एंड यू कैन इन्फॉर्म द एडमिन टीम, वी विल अरेंज सेशंस इन वीकडे एज वेल। हाँ कुणाल, रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगी, डोंट वरी। दोनों सेक्शन की रिकॉर्डिंग लिंक आपको दे देगी एडमिन टीम। एडमिन टीम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग लिंक टू द पीपल। ओके। तो सर अगर वीक में क्लासेस रहेंगे तो कोर्स जल्दी हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ 4-5 सेशन का ही तो फर्क होगा यार। जैसे देखो तुम्हारा, मैं बोलता हूँ लिनक्स और
क्लाउड का आई थिंक 5 to 6 सेशंस में हो जाएगा। हमारा मोटिव ही वही है ऋषिकेश की, हमको ना कोई भी चीज 50-50 या 100-100 घंटा नहीं पढ़ानी है, उसमें से उतना इन्फॉर्मेशन लो और प्रैक्टिकल उनको प्रोडक्शन नॉलेज पूरा बताओ, ताकि वो पूरा थरेली तुमको टूल कवर हो जाए। अब हम चाहते तो हम हमारा कोर्स कंटेंट ऐसे डिजाइन कर सकते तो जो साल भर चले, समझ रहे हो? हाँ बट हमको नहीं चाहिए ना, बिकॉज यू आर दी पर्सन जिसको जॉब की जरूरत है और जल्दी से जल्दी जॉब लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे, हम कंटेंट जब कवर करवाएंगे, विल गेट एन आइडिया। ओके, ओके सर। वैसे किसी ने मुझे पूछा इसलिए मैं, वरना तो वीकेंड पे ही चलेगा तुम्हारा सारा। बट अगर तुमको वीकडे पे क्लाउड और लिनक्स के सेशन चाहिए ऑन डिमांड तो बोलो, मैं वीकेंड पे भी अरेंज करवा सकता हूँ ट्रेनर को बोल के। नहीं, सैटरडे संडे ही ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मुझे बस वही पूछना था आपसे। हाँ, अब एक बारी पोल कर लो, आपको इंटरनली आप डिसाइड कर लो आप कैसे कंफर्टेबल हो, वरना तो फिर अपना नॉर्मल रूटीन वीकेंड पे चलते रहेगा। All right, guys. If no more questions, then let's wrap up this call because I'm also married and weekend है, समझा करो, वरना my wife will start cursing you, है ना? थैंक यू सर। थैंक